Assalamu alaikum to all the viewers and my wonderful participants of Rehan AI Teachers Institute. Myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and facilitator at Rehan AI Teachers Institute, teacher training bootcamp for 2 months. I welcome all the participants in today's class. Thank you so very much everyone for joining tonight. Tonight is 25th July 2025 and the day is Friday. The time is 4 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. Thank you so very much everyone for joining the class. Let's proceed toward the meditation. I request the participants please sit straight and let's practice the meditation video. Ji Nasimullah bhai, please play the meditation. And start your day with positive intention. Let's get into a comfortable seated position. Close your eyes and rest your hands on your knees with your palms facing up. Take 3 deep breaths with an open mouth exhale. Now, take a moment for gratitude. Focus on what you have to be grateful for today. Take another deep breath in and a deep breath out. Breathe in and imagine positive light energy coming into your body through the top of your head. As you breathe out, imagine that positive energy flowing through your body all the way down your limbs and pushing old, stagnant energy out through the tips of your toes. Breathe in positive, loving energy. And breathe out and let that positive energy flow through you, washing away any negative thoughts, energy, and emotions that aren't serving you. Continue this visualization for a few more deep breaths. With this, you're giving yourself an energetic cleanse to begin your day with high vibrational energy. Being intentional with your energy and learning to cultivate it is a valuable skill that can change the trajectory of your day and, in time, the trajectory of your life. Today is a new day, a beautiful day, with new possibilities and opportunities coming your way. Yesterday is in the past, so you can let go of that now. Let go of anything from the past that weighs you down. Each day is a chance to start anew, so start today with a fresh mind and a light heart. You have the power to shape your day in any way you desire. All it takes is intention in every little choice you make. So use today to create a brighter future for yourself. I'll be sharing some positive affirmations for your day. Feel free to repeat along with me in your mind. I am worthy. I am enough.
I love myself. I trust myself. I believe in myself and I'm fully confident in myself. I am exactly where I'm meant to be. Everything is happening for my greatest good. I am powerful, I am protected, I am guided. I am strong, I am brave, I am resilient. I choose love over fear. I am fully deserving of success and love. My life is abundant and full of joy. I am an artist of life. I have the power to create my dream life. Take 3 deep breaths with an open mouth. Exhale. Thank you so very much, participants, for practicing this meditation video. I request all of you, please turn on your cameras, and thank you so very much for joining tonight. Okay, participants, I request to you, please share your problems regarding the previous task on Wednesday, so that we'll pick them and discuss them first about their solutions, and then we'll move towards today's task. Okay, yes, Asif bhai, your problem, please. मैम सर नसीमुल्लाह भाई कह रहे थे कि जो टास्क रहते हैं वो आपने कंप्लीट कर लो, उसके बाद शीट जो है वो लॉक हो जाएगी, क्या ऐसे ही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपने डे टू डे टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे, तो ये उनके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है, ताकि बाकी सब जो कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा खुद को स्ट्रीमलाइन कर लें, और जो नहीं कर रहे उनको थोड़ा सा जो है वो अपने आप को फंक्शनल बनाना है, ताकि वो ये टास्क कंप्लीट कर सके। क्योंकि जैसे ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिस दिन आपका लास्ट डे होगा, और मेक श्योर के सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी, उसी दिन वाइंड अप हो मेरी जाएगी। शीट खराब है, उससे सेटअप नहीं है, वो ओके हो जाए तो फिर मैं कर लूँगा। मुझे बिल्कुल आसिफ भाई, आपका बार बार रिमाइंडिंग का बहुत शुक्रिया, और ये बहुत अच्छी बात है। आप जितना ज्यादा मुझे याद करते रहेंगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह कल सैटरडे है, कल आपकी शीट मैं कोशिश करूंगी कि बैठ के उसको ठीक कर दूं। जी ठीक है, मैं भी चाहता हूँ जल्दी हो जाए ताकि मैं भी जल्दी से टास्क अपना कंप्लीट कर लूँ। जरूर इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है ये जल्द से जल्द हो जाए, कोई डिले ना आए मेरी तरफ से। ओके तो सॉरी, पर वीकेंड के अलावा मेरे पास अभी आजकल जो है वो टाइम कम है, जी इसलिए ओके बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी, मिस लुबना, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अ, सलाम। एक तो सबसे पहले ये कि jinbaba.com पे ना काम करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो आगे परफॉर्म नहीं करता। उस दिन इंडिकेटर। वीडियो डाउनलोड हो गई थी, लेकिन अभी पता नहीं किसी और का भी प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं, लेकिन अब उसकी वजह से मैम ये है कि मेरे सारे टास्क कंप्लीट हैं, फेसबुक पे अपलोडेड है, लेकिन डेफिनेटली वो यूट्यूब पे नहीं है, तो मैं उसका लिंक शीट पे नहीं दे सकती। तो ये फिर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या आप इनकम्प्लीट लिख देंगे तो वो फिर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम बनेगी, तो उसको पर सोल्यूशन। आपसे कह रही है, मैंने आपसे कहा है कि मैंने उस प्रोसेस को आगे कम्युनिकेट कर दिया है, जैसे कि मैंने वेडनेसडे को ही कहा था, मैंने उसको कम्युनिकेट कर दिया है।
तो इंशाल्लाह रिलेवेंट जो पर्सन थे मैंने उनको बता दिया, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे है उनके कंसर्न शेयर करने हैं सर दौलत के साथ, फिर मैं आप लोगों के साथ उसका सोल्यूशन जो है वो शेयर कर पाऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो और मादर के साथ कल तो मैं कर नहीं सकी थी, और बस कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंसी थी इस वजह से, लेकिन इंशाल्लाह कल चीजें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, कल से चीजें इंशाल्लाह बेटर। ठीक है। और मैम वो जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा था वॉइस का, वो टैब की वजह से आ रहा था। मैंने जब उसी टैब के अंदर लॉग इन किया तो वो मेरे सारे वॉइसेस ठीक है, लेकिन अदर टैब से जाती हूँ तो फिर वॉइस बंद हो जाती है। तो मुझे सही थोड़ा सा ये बता दें कि अब जो मेरे लाइव मैंने कर दिए हैं उसके एआई के वॉइसेस नहीं है, उसको क्या करूँ? डिलीट करके दोबारा करूँ? है बस उसको ऐसे ही कंटिन्यूटी में जाने दूँ? जान चले ठीक है। थैंक यू सो मच मिस, थैंक यू सो मच। बस यही थी। वो जी। अस्सलाम वालेकुम मिस इकरा, कैसी हैं आप? आपका क्या चैलेंज है, क्या सवाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे वो ग्रुप में ऐड भी नहीं किया गया और मुझे समझ नहीं आती कि क्या काम करना है और क्या नहीं। कोई मसला नहीं है, तो मैं सिर्फ आपके लिए 4 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप उस ग्रुप में ऐड ओके, होंगे। ठीक है। ठीक है, अभी थैंक जब यू। तक वो आपकी क्लासेस इनॉग्रेट नहीं हो रही या स्टार्ट नहीं की जा रही, तब तक आप ये क्लासेस एंजॉय कीजिए, और फिर इंशाल्लाह थैंक 4 आपके लिए सेपरेट ग्रुप और सेपरेट क्लास शुरू की जाएगी डे 1 से, क्योंकि हम जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम 3 हफ्ते कंप्लीट कर चुके हैं अपनी इस बुक के, तो आपके लिए जी। फिर टास्क से करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, तो जो ओके, हम मेरे उधर सेशन ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हम दूसरा सेशन शुरू करने जा रहे हैं 4 अगस्त से, उसके पहली क्लास होगी, तो आपको उसमें ऐड करना है। ठीक है, लेकिन अभी थैंक जब यू। तक नहीं तब तक आप यहाँ इसी क्लास के साथ डेली पार्टिसिपेंट्स के साथ चैलेंज कीजिए, दोस्तियां कीजिए, कनेक्शन बनाइए, और ओके, ठीक है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। सामने को बसलाना, बताइए क्या सवाल है, क्या चैलेंज है? मैम मेरे ना बाकी सारे टास्क हो रहे थे। एक चैट जीपीटी पे जो वॉइस का था ना, वो रिटर्न में तो हो पा रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वॉइस में करना था, क्वेश्चन आंसरिंग जो टॉपिक दिया जाता है। तो इसीलिए वो कब से मेरा पेंडिंग था, वो मेरे से लॉगिन नहीं हो रहा था, जिसमें आता है ना, उस जगह वो ऑप्शन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। खैर आज मेरे पहले मैंने कहा आपको तंग करती हूँ, फिर मुझे मुझे लगा नहीं तंग करना। फिर मैंने खुद उस पर स्ट्रगल किया तो वो हो गया लॉगिन, लेकिन वो मेरे शायद सिस्टम पे ना लोड बहुत ज्यादा पड़ा है, वो मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर जाके मेरी होगी। 2-2 3-3 मिनट के बाद ना वो फिर कहता है स्टॉप रिकॉर्डिंग जूम पे ना मैम। कोई और इशू है हो सकता है मैम इसका, कि कंप्यूटर में मतलब मेरी कोई एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा पड़ी हैं, इस वजह से ये वो 2-2 मिनट के बाद कहता है कि आपकी रिकॉर्डिंग खत्म, अब आप दोबारा रिकॉर्ड करें। जूम पे प्रॉब्लम आ रहा है या चैट जीपीटी पे प्रॉब्लम आ रहा है? मैम वो ना मतलब एकदम रिकॉर्डिंग 2 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद स्टॉप कर देता है खुद से, और फिर ऊपर कुछ लिखा आता है जिसका मीनिंग होता है कि आपका लोड बहुत ज्यादा है। ये मतलब जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ वही बात है कि कंप्यूटर में ज्यादा मेरा कुछ ऐसा डाटा पड़ा है जो मुझे डिलीट करना है, क्लीन करना है, या कुछ और इशू है। कल उसका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, जैसे ठीक है ये मैम। जो हो आप और स्क्रीनशॉट देंगे तो मुझे समझ ठीक है, आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। जो मुझे समझ ठीक में आ रहा है आपके बताने से सिचुएशन, मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके जूम में रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है, चैट जीपीटी का प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पा रही जी मैम। हैं। और तो ये मैम जी मैम, और मैम वो गूगल शीट का भी मुझे शुरू में मुझे लगता है मेरी ही गलती की वजह से मैंने उधर मेरा माइंड नहीं गया, और मैं मुझे जो टास्क थोड़े थोड़े इजी लग रहे थे मैंने उधर ही अपना फ्लो बनाए रखा है, और गूगल शीट मेरी पीछे रह गई है मैम। टास्क मेरे बाकी सारे डन है, सिर्फ वाई इसी कॉल चैट जीपीटी के। तो मैम वो देखिएगा, मेरी वजह से ही मेरी एक्सेस रह गई है, तो मैंने उसको ओपन करके उसमें एक्सेस की रिक्वेस्ट सेंड की है। तो काइंडली जैसे आप इजी हो फिर वो मुझे कर दीजिएगा, ताकि मैं फिर ये काम मुकम्मल करूँ। मैंने आपको जो एक्सेस दिया था, आपका ईमेल कोई दूसरा ऐड है, और आज अच्छा, आ रहे हो चले तो मैं अपनी सारी ईमेल देख लेती हूँ फिर। मैं अभी आपको बता देती हूँ किस ईमेल को ठीक एडिट किया। ठीक है मैम। 1 मिनट दे रहे हैं। अच्छा,
इशाल ज़ारा, आपकी 2 ईमेल ऐड है बेटा। आप मुझे कंफर्म करो इसमें से कौन सी आपकी ईमेल है, और दूसरा ईमेल जो आप यूज नहीं कर रहे उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इशाल ज़ारा 85@gmail.com और इशाल ज़ारा खान 85@gmail.com। अब खान वाली सही है या सिंपल इशाल ज़ारा वाली सही है, इसको कंफर्म कर दो। मैम मेरी मे बी लैला खान अरीशा होगी, क्योंकि मेरा निक नेम अरीशा भी है। ये फातिमा 234657@gmail.com, ये किसी का है, वो भी बता देगी कौन है। मैम अगर हरीम फातिमा है तो फिर वो मेरा होगा, मेरी बेटी का नाम है। हरीम नहीं है, हरीम भी नहीं है और लैला भी नहीं है। यहाँ लुबना और लाइबा है, लैला नहीं है। और हरीम भी नहीं है, हरीम भी नहीं है एडिट। मुझे नहीं पता आप कैसे शीट को एक्सेस कर रहे हो और आप ऐड कर रहे हो। चले मैम, मैं फिर मैम हमारी कौन सी आपकी तकरीबन शुरू के कितने दिनों के बाद की क्लास में सारा वो ओपन करने का है आपकी क्लास में? कोई तीसरी चौथी क्लास में या फर्स्ट क्लास में आपने बताया है? प्रॉबेबली मेरे ख्याल है हमने जिस दिन टास्क शुरू कर लिए थे, 2 दिन के टास्क के बाद थर्ड डे पे मैंने गूगल शीट इंट्रोड्यूस करा दी थी। चलें ठीक है, बस ठीक है, फिर क्लास खोलूंगी ईमेल आपकी शेयर करते क्लास हैं। को। आप ईमेल शेयर कर दे जूम चैट में, नसीमुल्लाह भाई इनको एक्सेस प्रोवाइड कीजिएगा ओके, गूगल शीट। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। जी ओके। इशाल बेटा आप भी अपनी ईमेल कंफर्म कर दें, ठीक है, कि आप किस ईमेल से ज्वाइन करें। मेरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है बार बार, अगर ऑफ लाइन फिर ऑफ तो लाइट की वजह से होगा। ओके मिसिरम, गॉट इट। आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें प्रायोरिटी बेस पे। अच्छा जी, मैम मैंने आपको भेज दिया चैट बॉक्स में। चलिए बहुत शुक्रिया। नसीमुल्लाह भाई, इशाल ज़ारा की जो आईडी इशाल ज़ारा खान वाली आईडी है वो अप्रोप्रिएट है, दूसरी आईडी को रिमूव कर दें, ठीक है। और जो फातिमा की आईडी है आई थिंक वो मीरब फातिमा है, ठीक है, उसको रहने दीजिएगा। और मैं सिर्फ अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दिया गया, उसमें अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा अपनी, ठीक है मिस मेरे कुछ जी। इश्यूज हैं वो भी। मैं सिर्फ आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ जी। हाँ जी, मेरे कुछ इश्यूज भी हैं जो मैं अपने वो टास्क करी उसमें है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। नहीं समझ में आया आपने क्या कहा। आपको मेरी मैं आवाज आ सिर्फ, रही है? आपको मेरी आवाज आ जी रही है? आपके, जी आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे कुछ इश्यूज भी हैं जो कि मैं टास्क जो अपने कंप्लीट करी उसमें आ रहे हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही जी जी प्लीज प्लीज आप बता दें। हूँ। दो इश्यूज हैं। एक ये है कि जो मैं आपने ये टास्क दिया है ना कि लिंक्डइन पे म्यूचुअल फ्रेंड बनाने हैं, तो वो ना मेरे से हो नहीं रहा। जब मैं वो लिंक्डइन पर जाती हूँ, सरहान की प्रोफाइल खोलती हूँ, तो उनके जो कनेक्शंस हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ना उस पे वो मेरे से क्लिक नहीं होता, और वो मुझे ये कहता है कि आप जो है ना इनकी वो मेल एड्रेस यहाँ पे लिखें तो आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। ये बात मैंने 3 बार क्लास में एक्सप्लेन कर दी है कि जब तक किसी इंसान को, जब लिंक्डइन जो है वो ब्राउन टिक दे देता है, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली ना उसको मैसेज कर सकते हैं, ना उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अनटिल अनलेस के आप उसके थर्ड कनेक्शन को अपने कनेक्शन नहीं बना लें, उसके सेकंड कनेक्शन को अपना कनेक्शन नहीं बना लें। तो आप सबसे पहले जो रेहान मैंने स्कूल की कम्युनिटी है, सर रेहान के साथ एडेड है, उन लोगों को ऐड करना शुरू करें, ताकि फिर आपको इवेंचुअली जो है वो म्यूचुअल फ्रेंड भी पूरे हो जाएंगे सर रेहान के 500 लिंक्डइन पे, और साथ ही साथ आप उसके बाद सर रेहान को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते मिस मैं वो आपको ये बता रही हूँ कि जो भी कनेक्शन है ना उनको जब मैं क्लिक करती हूँ ना, सेकंड थर्ड या फर्स्ट हैं। जो भी उनको होता है, करने की जरूरत ही नहीं है कि आप सर वो रेहान की, वो आ ही नहीं रहे। यही बता रही है कि आपको सर रेहान की आईडी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि ऑथेंटिकेटेड पर्सन यहाँ पे आपको मतलब दौलत एजुकेशन वाला है, रहमत एम्पावरमेंट वाला है, मारिया इम्पैक्ट वाली है, पूरी एक लिस्ट है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप उन लोगों को पहले अपनी लिंक्डइन पे ऐड करना शुरू कर दें, ठीक है। वो आपने मेरे को इनसे ऐड ही नहीं करते, वो उसको कनेक्ट को वो करते ही नहीं है। मैं किस तरह उसको करूँ? कनेक्ट नहीं करते, क्यों नहीं मिस करते? मिस मारिया है वो हुई हुई है, एक आपकी आईडी हुई हुई है, एक सर नसीम है वो हुए हुए हैं, जो मेरे फेलोज यहाँ पर है वो कनेक्ट हुए हुए हैं, और को एक ऐड, अबंडेंस और जी। एडमिशन मैनेजर है प्रकाश एजुकेशन वाला, उनको ऐड कीजिए। और फिर रुबाब फातिमा है एजुकेशन वाली, उनको ऐड कीजिए। हमारी टीम में है मिस आसिया चाहत है। नवीन है,
उनसे कीजिए, मिस राहत को कीजिए, मिस अस्मा एजुकेशन वाली हैं, सामद के प्रिंसिपल, उनको कीजिए, हाँ, मैंने राना उनको का भी रिक्वेस्ट कनेक्ट भेजी हुई है। एक अबंडेंस वाले हैं, उनको भी भेजी हुई है। तो एक टर्की वाले हैं, उनको भी भेजी हुई है मैंने। तो अब वो आगे से नहीं मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा, तो मैं उसको कैसे कंप्लीट करूँ? जब ऐसा होता है ना, जब हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमें एक छोटा सा मैसेज लिख के भेजना होता है, ठीक है, कि हम ये उनको कनेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं और आप कौन है, ताकि वो आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड कर दे। जब तक आप मैसेज नहीं करेंगे ना, तो फिर आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट जब कोई देखेगा, अप्रोप्रिएट समझेगा, तभी आपको ऐड करेगा। अगर अर्लीस्ट प्रायोरिटी बेस पे और अर्लीस्ट टाइम पे आपने एक्सेप्ट करवानी है, तो अपना इंट्रोडक्शन भेज दें। ठीक है। दूसरा इशू मेरे साथ ये है कि जो मेरा इंस्टाग्राम है ना, उस पे जो मेरी शीट चेक हुई है, तो जो उस पे मैंने काम किया है, तो उस पे रिमार्क्स आए हुए हैं कि ये लिंक असेसेबल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि मेरा इंस्टाग्राम जो है ना, वो प्राइवेट है, वो पब्लिक नहीं हो पा रहा। तो ये कैसे होगा, मुझे ये समझ अच्छा ठीक, इंस्टाग्राम का देख लेते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है। जी मिस गुलशान फिजर, आपका क्या चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ मिस गुलशान, बहुत शुक्रिया आपका। आपने छुट्टी की थी, सब खैरियत ठीक ठाक रहा? आ, बस दुआ करें, मेरी फैमिली में कुछ बहुत सीरियस सिचुएशन है। अल्लाह ताला हम सबको साबित कदम रखे और ये जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए बस। आमीन। अच्छा मिस मरियम, एक तो मुझे क्लास के बाद आप 5 मिनट दीजिएगा अलग से। मैं ठीक। जिन पावर डॉट नेट को खोलती हूँ ना, तो मेरा काम नहीं हो रहा, मैं वहां पे फंस गई हूँ। मेरा यूट्यूब पे ना जितने भी अपलोड करने वाला टास्क है, वो मेरा सारे का सारा पड़ा हुआ है। और कुछ ये कर्सर का इशू है कि ये थोड़ा सा ना स्लो काम कर रहा है, तो क्लास ऐसे डिस्टर्ब होगी। आफ्टर क्लास आप मुझे 5 मिनट दे दीजिएगा। दूसरा, मेरी कैनवा की एक पोस्ट है, वो आज मैंने सरासब को भी भिजवाई थी। वो ना, वो डाउनलोड नहीं हो रही। उसके बाद दो जो हैं टास्क जो है ना, वो सॉन्ग क्रिएशन के, वो कंप्लीट हो गए हैं, वो हो गए हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। इज इट पॉसिबल कि वो फिर मैं या आपको या फिर सर नसीमुल्लाह को भेज दूं, कि सर वो देख के तो मुझे फिर वो अगर वो कंप्लीट होता है तो वो फिर दोबारा मुझे शेयर कर दिया जाए। मेरा सॉन्ग नंबर 4 जो है वो बना हुआ है, लेकिन ना वो डाउनलोड नहीं हो रहा। जी मिस गुलशान, मैंने बिल्कुल आपकी इस बात को फॉरवर्ड कर दिया था इस क्यूरी को भी, और जो हमारे कैनवा एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से, उन्होंने ये चीज रिकमेंड किया है कि प्रोबेबली आपकी उस वीडियो में आपकी जो वीडियोस हैं, नंबर ऑफ वीडियोस की कैनवस है वो बहुत ज्यादा है। शायद ये रीजन हो सकती है, क्योंकि उन्होंने भी डाउनलोड करने की कोशिश की, वो डाउनलोड नहीं हुई, ठीक है। हम्म। तो प्रोबेबली ये एक रीजन है। पर एनी हाउ, एक दूसरे एक्सपर्ट ने वो वीडियो डाउनलोड करने की कोशिश किया और उनके पास डाउनलोड हो गया, बट उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अब इतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी कि वो वीडियो भेज सके। तो जैसे ही वो अप्रोप्रिएट होगी, तो वो मेरे पास वीडियो आती है, तो आप उसको फिर अपलोड करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी आजम भाई, पहले तो एक बात मुझे ये बता दें कि आप अपनी जो गूगल शीट है ना, उसके साथ अपना ये वाला नाम लिख लें, इको वाला। और बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने अभी तक वाला नहीं सेलेक्ट किया, शफीक भाई, फारूक भाई और सलेमान भाई। आपने जो अपना व्हाट्सएप पे नाम लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है सलेमान खान वाला। अब मैंने आपको पहले भी समझाया कि ये वाला जो है, इसके साथ आपने एक वर्ड ऐड करना है, दैट्स एसटीडी गोल्स प्रॉब्लम, कि वो एक प्रॉब्लम है जिसको आपने फिक्स करना है, या जो आपका कोई अपना गोल है इंडिविजुअल, आप उसको फिक्स करेंगे। बट मेक श्योर करना है कि वो जो लिस्ट मैंने रिकमेंडेड भेजी हुई है सरहान की, आप उसमें से वाला सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमें पिछले 3 दिन से सरहान की बार बार ये मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को, हमारी जिस जिस निश में जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, उनको रिमाइंडर के तौर पर बार बार ये बात समझाई जाए, जो लिस्ट हमारी प्रिस्क्राइब है उसी में से आपने वाला वाली सेलेक्ट करना है। फारूक भाई, मैं दोबारा आज ग्रुप में भेज रही हूँ, जो हमारा बैच 11 का ग्रुप है, आप उसमें से दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसको अपने नाम के साथ ऐड कर दें और गूगल शीट में भी ऐड कर दें, क्योंकि कल कुछ अनाउंसमेंट होनी है आप सबके लिए, तो उसके लिए आपका वाला लगना बहुत जरूरी है। सो दैट्स काइंड ऑफ वेलकम जेस्चर फ्रॉम आवर साइड। हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा वेलकम कर लें। दो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम वर्चुअली जितना कर सकते हैं हम उतना आपके लिए जरूर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले पहले अपना वाला लगा लें, ताकि फिर मैं प्रॉपरली वो फॉरवर्ड कर सकूं अपनी टीम को। थैंक यू सो वेरी मच। जी आजम भाई, अब आपका क्या था? अच्छा, एक सेकंड। जी अस्सलाम इस वालेकुम। वाला को जो हमने लगाना है वो फेसबुक पे बेसिकली अपलोड करना है ना, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सब सही? सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म पे सब, क्योंकि फारूक भाई ये आपको ठीक। इतना इतना यूनिक कर देगा कि कोई भी इंसान कुछ भी लिखेगा और आपने कोई काम किया होगा तो सबसे पहले आप गूगल सर्च में शो होंगे। जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी कि ना मैंने आज रीता पियर्सन की वीडियो किसी को रिकमेंड की थी। मैंने उनसे कहा कि आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ रीता पियर्सन लिखे तो आपको वीडियो मिल जाएगा जो मैं आपको कह रही हूँ कि बीइंग अ फैसिलिटेटर आपको देखनी चाहिए। एंड शी रिप्लाइड मी कि मैंने जैसे रीता पियर्सन लिखा तो थर्ड वीडियो आपकी आ रही थी मुझे, तो मुझे क्या आपकी वीडियो देखनी थी? तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी वीडियो नहीं रिकमेंड की आपको, मैं आपको कह रही हूँ कि एक्चुअल वीडियो रीता पियर्सन की ही निकाल के देखिएगा और उसका लिंक चले मैं आपको भेज देती हूँ, फिर आप देख लें। इट्स द सेम थिंग कि अगर आप अपने लिए कोई वाला वाली सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको बहुत यूनिक बना देगा। फारूक सलीम अगर आप लिंक्डइन पे सर्च करें ना, इतने फारूक सलीम आ जाएंगे कि उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा फारूक सलीम भाई हमारे वाले भाई कौन से। ठीक है, तो जब हम फारूक सलीम के साथ कोई वाला ऐड कर देंगे ना तो सबसे पहले हमारे फारूक सलीम भाई हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऐड करने का दूसरा पर्पज ये भी है कि आपको बहुत यूनिक और आइडेंटिफाइबल बना दे। ठीक है, तो इसके दूसरा एक एडवांटेज ये भी है आपको। ठीक है जी आजम भाई। ओके अच्छा मैम एक तो ये जो क्या कहते हैं आपका जिन बाबा डॉट नेट की जो बात कर रहे हैं हम लोग सारे, तो वो बेसिकली तो यही है कि शायद जो है वो हम लोगों ने एक लिंक देना होता है जिन बाबा को, जो कि जाकर जो है वो सारे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हमारी जो वो होती है लाइव जो भी कुछ किया हुआ होता है हमने वो उसके ऊपर जाके पोस्ट कर देता है, राइट? तो अगर तो खाली लाइफ को ही जो है वो हम लोग उसको उसके ऊपर जो है वो पोस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग अगर हमारा जैसे लाइव सेशन हम लोग ले लेते हैं आपका वो यूट्यूब के ऊपर लाइव हुआ हुआ होता है, तो वो जो यूट्यूब का लिंक होता है वो हम लोग जो है वो जो डाउनलोड जहाँ से हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे, कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी कि जहाँ पर आप जाके उस लिंक को डालें तो वो वीडियो वहाँ से डाउनलोड हो जाता है और वो वीडियो हमारे पास आ जाएगा जो लाइव, जैसे हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास स्ट्रीम यार्ड के ऊपर जो है वो डाउनलोड की ऑप्शन नहीं है और उसके ऊपर भी नहीं है, रीस्ट्रीम के ऊपर भी नहीं है। तो जो रीस्ट्रीम ने जो है वो अपलोड किया होगा यूट्यूब के ऊपर लाइव में जाके, अगर हम लोग उसका लिंक जो है वो कॉपी करके उधर से जो है वो उस वेबसाइट से जाके जो है वो उसको डाउनलोड कर लें, तो वो वीडियो पूरा का पूरा हम लोगों के पास जो है वो आ जाता है और उसको जो है वो फिर हम लोग आगे शेयर कर सकते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अलहदा अलहदा करके। तो जैसे लाइक टेडेक्स के जो रिव्यूज़ हैं वो भी हम लोग जो है वो अगर जूम के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर हम लोग जो है वो उसको जैसे आपने कहा कि वो आप लाइव भी कर सकते हैं, तो उधर से भी उसको डाउनलोड करके लाइव जो है वो फिर उसके बाद आप जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जो है वो हम लोग उसको अपलोड कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि क्या ये इसको हम लोग इस तरीके से वर्केबल कर सकते हैं, और दूसरा ये मेरा वाला जो इको वाला है वो ठीक है या नहीं है? मैं कोई आपसे कह रही हूँ कि लिस्ट में दोबारा भेज दूंगी। दूसरे सवाल का पहले जवाब इसलिए दे रही हूँ कि वो बहुत जल्दी और आसान सा है, तो मैंने कहा मैं पहले उसको कम्युनिकेट कर दूँ। इसलिए क्योंकि वो जो लिस्ट है ना उसको STD गोल जो हमारे बेसिक हमारी नीड्स है उसकी बेस पे बनाया गया। तो अगर आपका इको वाला उनमें से किसी के साथ फिट इन हो रहा है तो आप उसमें से सेलेक्ट कर ले और फिर उस पे काम कर ले। अच्छा, ठीक, मैं तो सब में जो है ना वो मेरा तो जो है ना वो इको वाला सबके साथ फिट इन होता है। बस फिर और आप उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला है आपको लगता है कि ये ज्यादा एक्चुअली स्पेसिफिक है। एग्जैक्टली सॉरी, मैं आई एम डिस्कसिंग इट जो है वो आपके साथ में ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैं इसकी ऑलरेडी जो है वो ब्रांडिंग जो है वो मैं लेके चल रहा हूँ और बेसिकली आई एम अ वॉइस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जो इस मिशन को भी आगे लेके चल रहा है, ठीक है, और उसके अलावा भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसको जाके सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर, तो इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड और जो हमारा जितना भी जो सब काम हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर, वो भी उसके ऊपर जो है वो साथ साथ जो है वो मेंटेन होता जा रहा है इवन ऑन वेबसाइट। तो बट दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। तो ये तो एक चीज़ है। थैंक यू।
थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, जो आपने पहला सवाल पूछा कि आप उसको डाउनलोड करके तो उसको जो है वो अपलोड करते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप एक बार डाउनलोड कर लें और फिर उसको अपलोड करते जाए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इन केस के जब तक जिन बाबा का प्रॉब्लम जो है वो मैंने कम्युनिकेट कर दिया है बेंच से हुई, तो जैसे ही मुझे उनके तरफ से जो बात आती है तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि अपना टास्क, अपनी चीजें सारी लाइन अप रखे, तो वो ये काम कर सकता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा था आप रिव्यूज भी लाइव कर सकते हैं, ताकि आप एक ही बार लाइव करने के बाद उसको डाउनलोड कर ले, या एक ही बार रिकॉर्ड करके अपने पास रखना है, फिर उस रिकॉर्डिंग को हर जगह अपलोड कर देना। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जी तो ये एक दूसरा वे आउट है जो आपने सबके लिए शेयर कर दिया। थैंक यू सो वेरी मच। राइट। जी मिस रुबना, आपका क्या सवाल है? मिस मरियम, जिस दिन हमने डॉक्यूमेंट्री आपने हमें सिखाई थी 11 लैब्स पे, आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा था स्पेसिफिक। मैं चाहती हूँ कि आप वो थोड़ा सा शेयर करते हैं हमारे साथ अगर। जी, मैंने वो आज डॉक्यूमेंट्री दोबारा एक्सप्लेन करनी है क्योंकि मिस फायदा पिछले 2 दिन से हमारे साथ नहीं थी, सो आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर कि उनके लिए और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार दोबारा से इसका सेशन कर लें, ताकि सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। और फिर वीकेंड भी है और आप लोग बहुत अच्छे से इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और आपकी अच्छी ग्रिप। ठीक है, तो मैं आज दोबारा उस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देती। थैंक यू सो वेरी मच। जी इरशाद। मैम, वो जब आपने बताया था ना कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है, तो उससे पहले मेरा टास्क कंप्लीट नहीं था सॉन्ग का, वो मैंने पहले बना दिया, एआई पे मैंने बना दिया। वो जो एआई वाला सॉन्ग था उससे मैंने पहले बना दिया। कोई इशू तो तो कोई नहीं बात होगा? नहीं, नहीं ईशान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों में से जिस भी वे आउट को पिक करेंगे दैट्स प्रीटी ओके। ठीक है, आप चाहे तो सॉन्ग बना लें, चाहे तो आप फिर डॉक्यूमेंट्री बना लें। पर मैंने ये सजेस्ट किया था कि जो पाकिस्तान के टाइटल्स हैं उन पे अगर आप सॉन्ग ही बनाएंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। नहीं लेकिन मैम, अगर मैंने उन पे जैसे आज का हमारा जो टाइटल है ना वो एआई का है, तो अगर आज के टाइटल पे अगर आप ट्राई करो तो आज के टाइटल पे आप अपनी डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर सकते हो। ठीक मैम है, उसको मैंने सेव कर लिया, उसको मैंने अभी सेव कर लिया निकाल के। मैंने यही कहा कि ठीक है, वो आप जो पहले कर चुके हो ओके है। आपने दोनों मेथड इसलिए सिखाए जा रहे हैं ताकि आप लोग जो है कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख लें। ठीक है, इसलिए थोड़े टाइम में हम ये चीजें इंट्रोड्यूस करें। अदरवाइज जो हमारा डॉक्यूमेंट्री प्लान होता है वो हम टीचर ट्रेनिंग में नहीं इंट्रोड्यूस करा रहे थे। लेकिन अब जैसे कि ध्यान साहब के इंस्ट्रक्शन है कि थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कम्युनिकेट कर दी जाए ताकि आप लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाए और फिर फर्दर ये हमारी चेंज है वो इसी तरह से अच्छी चलती रहे। तो इसलिए फिर सारी चीजें कोशिश की जाती है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब आपके साथ शेयर करें। ठीक है, और फिर आप लोग बहुत अच्छे से उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सको और हमसे भी ज्यादा अच्छा काम। विश यू गुड लक। जी सिमुला भाई, आपका हैंड रेज है। जी मैम, ये बात पूछनी थी कि टेटा के रिव्यूज उर्दू और इंग्लिश दोनों में करने हैं या सिर्फ कोई भी लैंग्वेज हो सकते हैं, चाहे उर्दू चाहे इंग्लिश? आ, नहीं, वैसे तो दोनों में ही करने हैं, लेकिन अच्छा हाँ, ये एक कंसर्न भी था पार्टिसिपेंट्स का कि वो आपने तो फिर एक ही सेल दिया हुआ है, एक सेल में हम दोनों लिंक्स कैसे पेश करें। तो पार्टिसिपेंट्स आपसे रिक्वेस्ट की गई थी और मैंने जब गूगल शीट को एक्सप्लेन किया था तो मैंने हाइपर लिंक्स को एक्सप्लेन किया था। और हाइपर लिंक्स को लगाने का रीजन ये होता है कि जब आप अपनी गूगल शीट खोलेंगे तो आपको ज्यादा मेस्ड अप नहीं लगती, वो बहुत नीट एंड टाइडी लुक आता है। और आप एक सेल के अंदर 4 लिंक्स भी अपडेट कर देंगे तो कभी भी बहुत ज्यादा ओवर पैक नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए हाइपर लिंक इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब एक सेल के अंदर आप 10 लिंक भी लगाना चाहें वो लग जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप में से मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई एक ही रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है फिर आप सिर्फ इंग्लिश रिव्यू रिकॉर्ड करें। उर्दू स्किप हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश रिव्यू स्किप नहीं हो सकते। लेकिन अगर 2 बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि मैंने जैसे कि शेयर किया था कि हमारी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो कि फेसबुक पे हमें फॉलो करेगी और वो इंग्लिश को ज्यादा अप्रोप्रिएटली नहीं समझते, क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है ना, हम नेटिव स्पीकर नहीं है उसकी। तो इसलिए आप 2 रिव्यूज बनाएंगे तो आपकी अपनी भी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और आजकल वैसे भी ये ट्रेंडिंग है और ये हो सकता है कि कुछ ही देर में ये चीज बहुत अच्छी भी हो जाए कि हमें अपनी लैंग्वेज को सबसे पहले सीखना चाहिए। और अगर आप खुद उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, खुद उसको वैल्यू नहीं दोगे, तो कोई दूसरा नहीं देगा। चाइनीज में ही सारी चीजें डील करते हैं, तो कि उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, बहुत ज्यादा चैटबॉट्स बना लिए, एआई में भी कॉम्पिटिटर बन गए हैं चैट जीपीटी के, बट स्टिल दे आर वर्किंग इन चाइनीज लैंग्वेज। तो अगर हम लोग खुद ही अपनी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेंगे और उसको वैल्यू नहीं देंगे तो कोई बाहर जाके तो देने वाला नहीं।
तो इसलिए कोशिश करें कि उर्दू का कंटेंट और उर्दू लैंग्वेज को भी अप्रोप्रिएटली जो है वो यूज करना बहुत जरूरी है। तो उर्दू का कंटेंट को आप सबसे इसलिए कहा जाता था कि हम ही वो पहली आवाजें बन जाए जो अपनी इस लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके और लोगों को समझाने में आसानी हो कि कोई मसला नहीं है। अगर आप एक लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे हैं और उर्दू में बहुत अच्छे हैं तो आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब चाइनीज वाले ट्रांसलेटर्स हायर कर सकते हैं और ट्रांसलेटर्स को रख के फिर अपनी इतनी ऑफिशियल प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट और उनके और जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो ट्रांसलेटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो फिर हम तो दैट्स प्रीटी ओके, हमें तो बहुत आसानी हो जाएगी। और हम तो वो कौम है जो कि माशाल्लाह से हर एक काम में बहुत अच्छी है। चाहे इंग्लिश सीखनी हो वो तब सीख लेंगे, वो चाइनीज सीखनी हो वो चाइनीज सीख लेंगे, अरबिक सीखनी हो अरबिक सीख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उर्दू सीखनी है जो कि हमारी अपनी जबान है। ठीक है। जैसे कि अगले दिन में एक सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब है, वो एक्रेडिटेशन देते हैं 6 मंथ के कोर्स की। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा वो प्रमोट करते हैं और इसी चीज पे प्रमोट कर रहे थे, तो उनकी ये बात बहुत अच्छी थी। आजकल उस लैंग्वेज में अपने बच्चे से कम्युनिकेट करिए जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 300 वोकेबलरी वर्ड्स है उसके पास, और वो बहुत बेसिक है। शट द डोर, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा हमारे पास कोई अच्छी वोकेबलरी नहीं है इंग्लिश की। बट वो उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने में हेजिटेंट है और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है जिसके उसके पास 26,000 वर्ड्स मौजूद है। हम डे टू डे लाइफ में भी उर्दू ही बोलते हैं, घरों में भी, और पंजाबी हमारी कम होती है। हमारी जो मदर टंग है उसको हम कम बोलते हैं रादर देन अपनी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हम फिर भी हेजिटेंट होते हैं उर्दू बोलने में। और हम में से अक्सर, क्या मैं कहती हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू सीखते बोलनी ही नहीं आती। वन ऑफ देम, मैं खुद भी उनमें से एक हूँ जिसको उर्दू नहीं बोलनी आती। और ये सारी चीजें हमारे मेरे टीचर रहमत एम्पावरमेंट वाला जो है, वो मेरे मेंटोर भी हैं, टीचर भी हैं और हम मेरे कुलीग भी हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। और उनसे मैंने ये सीखी कि आप कुछ भी बोले, आपको अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है इंस्पायर ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज कभी भी हिंडर नहीं होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में। आप उर्दू में कम्युनिकेट करें, आपको बेस्ट कम्युनिकेटर होना चाहिए। आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश में बेस्ट कम्युनिकेटर हो। आपकी बात सामने वाले को डिलीवर होना बहुत जरूरी है। और सर रेहान अल्लाह वाला कहते हैं कि अगर आप किसी को अंडे दे रहे हैं तो आपके 12 के 12 अंडे अगले के पास पहुंच जाने चाहिए। ये न चाहिए रास्ते में 2 टूट जाए, 6 जो है वो क्रैक हो जाए और 6 उसके पास पहुंच जाए। तो इससे आपकी कम्युनिकेशन गैप तो आपकी तरफ से शुरू हो गया, तो सामने वाला वो जो 6 अंडे पहुंचे हैं वो भी 6 की बजाय 4 लेगा, बाकी 2 वो भी स्किप कर देगा। तो देने तो 12 थे मैंने, लेकिन 12 में से 6 तो मैंने खराब कर दिए और 2 उसके पास जाते जाते खराब हो गए, तो पीछे रह गए 6, तो 4 सॉरी। तो 4 में से मतलब ये कि अब वो अपनी अकॉर्डिंग परसीव करेगा और अपनी जो उसकी परसेप्शन है उसको अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो बेहतर ये है कि हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी कम्युनिकेशन को इतना क्लियर रखें कि लैंग्वेज हिंडर नहीं करे कभी भी। जी बिल्कुल शान। मिस मरियम, रिव्यू जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इंग्लिश उर्दू, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि इंग्लिश उर्दू दोनों का इकट्ठा ही हम उसको ना रिकॉर्ड करते हैं कि वो ऊपर नीचे ही पड़े होते हैं। अगर आप उस प्रोफाइल में जाके देखें तो रिव्यू इन इंग्लिश इन उर्दू जो है वो आगे पीछे ही होते हैं। तो मुझे ना वो हाइपर लिंक जो है उसका नहीं पता कि किस तरह से करना है। अगर आप अगर तो उसी के अंदर पेस्ट करके फिर वो रैप करके करना है वो तो हो जाएगा। अगर वैसे जनरेट करना है तो वो फिर एक दफा प्लीज आप बता दीजिएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी आजम भाई, मिस लुबना आपको कोई सवाल है? ये पहले वाला हाथ रेज है आपका। अच्छा ठीक है, फिर हैंड लोड डाउन कर लीजिएगा। जी आजम भाई। अच्छा मैम, बस एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि अगर कोई कम्युनिटी जो है वो अगर हम लोगों को ज्वाइन करना चाहती है हमारे इस प्रोग्राम को, तो मैं किसको थ्रू कराऊं और कैसे थ्रू कराऊं, ये प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जयप्रकाश एजुकेशन वाला इज द राइट पर्सन, आप उनसे ओके। कांटेक्ट कीजिए और उसके थ्रू वो कम्युनिटी हमें ज्वाइन। ठीक चलो, है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ओके पार्टिसिपेंट, सो हम आज की टेट टॉक नहीं है। टेट टॉक हम वेडनेसडे को देख चुके थे। टेट टॉक इंशाल्लाह हमारी जो होगी वो मंडे को होगी। तब हम बात कर लेते हैं अपने टास्क के रिलेटेड। तो आज हमारा सबसे पहला टास्क स्टोरी पोस्ट का है। आई एम गिविंग यू जस्ट 5 मिनट्स यू गाइस
गो एंड क्रिएट योर स्टोरी पोस्ट, 5 मिनट में स्टोरी पोस्ट क्रिएट कीजिएगा। लेकिन एक साथ ही साथ मैं एक टिप देती चलूं, चैट जीपीटी को छोड़ दे, चैट जीपीटी से स्टोरी पोस्ट क्रिएट कीजिएगा। आई डिड आई एक्सप्लेन अबाउट परप्लेक्सिटी? मैंने परप्लेक्सिटी आप सबको इंट्रोड्यूस करा दिया ना? Yes. Then go and ask Perplexity to create the story, and you guys surprisingly using that, and you will be surprised that this Perplexity will create a very amazing story, and just within 2 minutes, it will give you the इमेज एज वेल। वो आपको इमेज भी 2 मिनट में दे देगा और स्टोरी भी 2 मिनट में बना देगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विद इन द क्लास वी कैन कंप्लीट आवर टास्क 1। हम अभी क्लास में ही बैठे बैठे अपने टास्क 1 कंप्लीट कर देंगे। सो साथ साथ आप अपने सवाल भी बता सकते हैं, और साथ साथ आप इतनी देर में परप्लेक्सिटी को प्रॉम्प्ट दीजिए और अपनी स्टोरी पोस्ट कंप्लीट कर लीजिए। ओके मिस लुबना, यस डन मैम। ओके थैंक यू मिस लुबना। यस मैम, मैंने साथ साथ कर ली थी, वो देख के टास्क देख के तो उसको कर लिया था कंप्लीट। मिस मैंने अभी कोई टॉपिक पे फारूक भाई आप मुझे ये बताएं, आप पेज 11 में एडिट नहीं है? अगर नहीं है तो मैं आपको ऐड कर दूं। मतलब मुझे क्यों ये लग रहा है कि आपको टास्क नहीं मिलते। और फारूक भाई आई रियली अपोलोजाइज फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना था। मैं टॉपिक शेयर करिए आपके लिए स्टोरी पोस्ट का पूरा। क्या आप अपने लैपटॉप को टेबल और चेयर के साथ यूज नहीं करते? एक्चुअली वो ये रहा है कि जिस जगह पर मेरा राउटर है ना, वहाँ टेबल चेयर का सेटअप नहीं है, और मैं अच्छा जब वहाँ टेबल चेयर वाली सेटअप में जाता हूँ तो वहां से राउटर दूर हो जाता है, तो मुझे ना वॉइस क्लियर हो रही होती है ना पिक्चर, मतलब वीडियो आ सही से सही। तो मैं थोड़ा Got it. इस इश्यू में थोड़ा सा फंस गया। ठीक है ठीक है जी, मैंने आपके लिए शेयर कर दिया। पार्टिसिपेंट्स मैंने स्टोरी पोस्ट का टाइटल और स्टोरी पोस्ट का जो टास्क है वो शेयर कर दिया जूम चैट में। यू कैन गो एंड कंप्लीट इट, और आप मिस इसको मरियम। कंप्लीट कर सकते। जी मिस गुप्ता। मैम एक तो लिंक्डइन जो है ना, इट्स वेरी टफ फॉर मी। मतलब मुझे ना इसको प्रॉपर यूज करना नहीं आता। आपने मतलब काफी दफा इस चीज को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मुझे ये बताते हैं कि हम जैसे थर्ड सेकंड या थर्ड उनके कनेक्शंस में जाके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो मैम फाइंड आउट कैसे करना है? मतलब उनकी कनेक्शंस को कैसे? एक तो अभी आपने बताया ना कि सर्च करें, जैसे मारिया इम्पैक्ट वाली है, दौलत है, राहुल है, उन वो तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मिस आपने तो अभी तक मेरा कनेक्शन ही नहीं एक्सेप्ट किया, पेंडिंग आ रहा है, तो मैं कैसे जाऊंगी? ऐसा है कि मैं अभी कहा, मेरे ख्याल है मैं सिर्फ और सिर्फ इस काम मैं बल्कि अपना लिंक्डइन भी नहीं खोलती। मैं पिछले 2 हफ्तों से अपना लिंक्डइन खोल के चेक भी नहीं किया कि किसी ने कुछ लगाया या नहीं लगाया। मुझे ये भी नहीं पता, और मेरे लिंक्डइन पे बहुत सारी जो है पोस्ट और बहुत सारे नोटिफिकेशन रोज आते हैं। मैं बाकी नहीं चेक किया, तो आई एम सो सॉरी। मैं अभी चेक करके फिर आपके साथ भी रिक्वेस्ट भी कनेक्ट कर लेती हूँ आपके साथ, और इसके साथ बता भी देती हूँ। फारूक और भाई भी मिस आप वॉलंटियरली हेल्प करना चाह रहे हैं, वो आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उनसे कनेक्ट करके इस लिंक्डइन के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच। और मैं ठीक है फारूक भाई, मैं आपसे रब्ता कर लूंगी इंशाल्लाह। और बस मैम अगर आप 2-3 मिनट का सिर्फ हमें ये डेमो दे देना कि मतलब बता लिंक्डइन में दूंगी। जाके हमने कनेक्शंस फाइंड आउट कैसे करने हैं, बस ये थोड़ा सा पता चल जाए, क्योंकि इट्स जी वेरी मतलब जी, मैंने नहीं यूज किया पहले, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया कोई नहीं मसला हो रहा। नहीं है, कोई मसला नहीं है। ओके, आई होप माय स्क्रीन इज शेयर फॉर एवरीवन। Meanwhile, participants, please complete your story post task and upload on the social media platform. And most importantly, you guys can upload your story post as well on the YouTube, because I just got it news. I just got this understanding from Sir Rahmat Empowerment Wala on third Wednesday. We have a class, और मुझे तब पता चला कि हम YouTube पे भी स्टोरी पोस्टिंग कर सकते हैं। I have to do it and you guys have to do it. और अगर हम ये सब करेंगे तो फिर आप सबको भी ये करना है। तो लेकिन खैर हम आपको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। मैं आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। अगर कोई करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाह रहे यूट्यूब पे पोस्टिंग, ओके। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपकी ही पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। आप अपने कैनवा पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे। आप दोनों तरीके से अपलोड कर सकते हैं। नहीं, ये क्या कह रहे हैं मुझे?
Mariam, looking to do your network, customize profile to set up a नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि नेटवर्क में मुझे रहमान इंस्ट्रक्टर GTI Mavish Istia instructor Kamila Medicine Syed Demo MD instructor mechanical technical Indian okay जी लाला आपका कोई सवाल है? जी मैम, अभी आप बात करी थी, मैं एक तो मैम ये मैंने वो एक्सक्यूज करना था कि लाइट चली गई थी और मैं टैब से ट्राई कर रही थी कि मैं कनेक्ट हो जाऊं, और दूसरा मैम आप बता रही थी कि हम ना स्टोरी भी पोस्ट कर सकते हैं। मैंने नहीं बताया अभी से, मैंने अनाउंस की है। मैं अभी ओके बताती हूँ मैम, कि ओके मैम, ओके। कुछ मिस नहीं हुआ, डोंट वरी। मैंने सिर्फ अभी कहा कि स्टोरी पोस्ट बना ले 5 मिनट में, फिर इंशाल्लाह हम 10 बजे अपना दूसरा सेशन शुरू करते हैं, जो कि मैंने आज सारी चीजें एक्सप्लेन कर। ठीक है, अभी आप ये कहा। अच्छा, जो पार्टिसिपेंट्स लिंक्डइन पे न्यू हैं, उनके लिए शेयर करियो। आप यहाँ पे एक तो सर्च बार है, आप यहाँ से सर्च करेंगे तो ये सर्च उनके लिए होती है जिनको आप डायरेक्टली सर्च करना चाह रहे हैं और आपको पता है कि ये ऑथेंटिक पर्सन है, और आप इस तरह से इनको सर्च कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ठीक है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक, जैसे अभी मेरी वॉल पे जो है वो ये जो एक पर्सनैलिटी है, ये एक मिनट, फॉरेनर है, और अभी कुछ ओह गॉड, मैं इंडियन। सो ये जो एंगन मिस है, ये हमारी फर्स्ट कनेक्शन में आती है और सर रेहान के साथ म्यूचुअल है, और आप इनको लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और ये जो मिस है, ये हमारे कुरंगी कैंपस को भी विजिट कर चुकी हैं और फिजिकल विजिट कर चुकी है। ठीक है, मैं जूम चैट में आपके लिए इनका लिंक शेयर कर रही हूँ। जो जो इनके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें और फिर आप इनके साथ इंटरव्यू भी कर सकते हैं। शी नोज वेरी वेल अबाउट रेहान स्कूल सिस्टम। अच्छा, And, अच्छा, अब अगर आप उन लोगों को सर्च करना चाह रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपके यहाँ पे कनेक्शन में है और आपको पता है कि वो कौन कौन है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च करते हैं मारिया इम्पैक्ट वाली, तो यहाँ पे आप मारिया इम्पैक्ट वाली को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको उनकी प्रोफाइल मिल जाएगी और आप इस तरह से सर्च करेंगे। और जो लोग यहाँ पे रेहान स्कूल सिस्टम में स्टूडेंट्स हैं, जैसे अब्दुल रहमान है, अब्दुल अजीज साहब हैं, आप उन सबको यहाँ पे सर्च करके उनको भी ऐड कर सकते हैं लोग। आप इसको अब्दुल रहमान को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब्दुल अजीज आईटी वाला है, उनको ऐड कर लें, वो भी सर रेहान के साथ एडेड है। और जैस्मीन को ऐड कर लें फेसबुक लिंक्डइन पे, वो भी एडेड है। अच्छा, अब अगर हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हमने किसी को ऐड करना था, हम आएंगे माय नेटवर्क में। सॉरी, यहाँ पे आपने लिखना है सर्च बार में गूगल, और गूगल से हमें बहुत सारे जो सर्च है वो मिल जाएगी। ठीक है, और वो लोग मिलेंगे जो एजुकेशनल स्टाफ जिनको सर्च करना चाह रहे हैं, उनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं गूगल। जैसे आप गूगल को सर्च करेंगे तो आपके पास ये वाला गूगल का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के नाम से है, वो आपके पास आइकन शो होगा, उसको क्लिक कीजिए। आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर आ जाएगा। एक तो इसको फॉलो कर ले गूगल को, ठीक है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, आप ये देखें, आप यहाँ पीपल आपको शो हो रहे हैं, पीपल फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड, थर्ड कनेक्शन। इस तरह से ये हर किसी के होते हैं। फर्स्ट कनेक्शन होते हैं जो आपके डायरेक्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। सेकंड कनेक्शन होते हैं जो उनके फ्रेंड होते हैं। थर्ड कनेक्शन होते हैं जिनको आपने फ्रेंड बनाया ना, फॉर एग्जांपल मिस लुबना ने मुझे फ्रेंड बनाया है, तो मैं मिस लुबना की फ्रेंड हूँ और उनकी फर्स्ट कनेक्शन में हूँ। लेकिन
अब कोई मुझे मिस लुबना की बजाय मिस लुबना को भी फ्रेंड बना रहा है और मुझे भी फ्रेंड बना रहा है, जैसे फारूक भाई मुझे ऐड कर लेते हैं, तो फिर मैं फारूक भाई के लिए सेकंड कनेक्शन होगी, क्योंकि अब वो मिस लुबना के फर्स्ट कनेक्शन है, मिस लुबना उनके लिए फर्स्ट कनेक्शन है और मैं उनकी सेकंड कनेक्शन, क्योंकि मैं मिस लुबना की फ्रेंड में हूँ। ठीक है, और अगर कोई मेरे फ्रेंड को आगे फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो दैट पर्सन विल बी द थर्ड कनेक्शन फॉर दैट। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके, अच्छा जी, अब एक तो हमने गूगल को सर्च कर लिया, यहाँ पे आ जाएंगे, व्यू पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिर कुछ फिल्टर्स लगाने होते हैं, और फिल्टर्स को ऐड करते हुए फिर आप अपने जिन लोगों को ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड करेंगे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे पीपल में, पीपल पे आके और यहाँ पे आपने फिर यहाँ कंट्री वाइज सेलेक्ट करना है कि आपको किस कंट्री के लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऐड करने हैं। यहाँ पे आपको पूरी जितनी थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे कंट्री के लोग आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अभी सबसे पहले जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग आपको नजर आ रहे हैं, कितने सारे लिंक्डइन पे हैं। इंडिया के 58,000 नंबर ऑफ पीपल यूज करते हैं। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट एक सेपरेट उनकी स्टेट है, 54,000 पीपल नंबर ऑफ पीपल आर यूजिंग लिंक्डइन। सैन फ्रांसिस्को, मतलब उन्होंने कैटेगोरिकली आपके साथ सारा कुछ शेयर कर दिया कि आप किस किस को किस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे जिस एक स्पेसिफिक या तो यहाँ से स्पेसिफिकली आप उसको क्लिक करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कैलिफोर्निया के लोगों को ऐड करना, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि कैलिफोर्निया के लोगों से कनेक्टेड रहूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया के क्लिक करूंगी और मुझे यहाँ पे अब जितने नंबर ऑफ पर्सन ये शो हो रहे हैं दे ऑल आर बिलोंग टू कैलिफोर्निया, और ये गूगल के जितने भी टॉप सर्चेस में से है ये वो है, और ये वो कनेक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा वैलिड है और बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शन है। जैसे अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे ये कैसे पता चलेगा ये कौन से वैलिड ग्रुप है। ये जो पहली जेनिफर हॉलैंड है, ये अदनान इफ्तिखार, रेहाना लवाला और मेरे 3 और म्यूचुअल कनेक्शन है जो इनके साथ म्यूचुअल है। अच्छा, अब ये मुझे कैलिफोर्निया के क्यों शो पता चला, क्योंकि जो अदनान इफ्तिखार भाई हैं वो कैलिफोर्निया में ही रहते हैं और आई मेट हिम पर्सनली, और मैं कोई 2 से 3 बार उनसे पर्सनली मिल चुकी हूँ। ठीक है, वो पाकिस्तान आ चुके हैं विद फैमिली और इंडिविजुअली भी। ठीक है, सो आई कनेक्ट विद दिस पर्सन, तो मुझे पता है कि मैं अगर उनके साथ कनेक्ट करूंगी इस तरह से उनके सेकंड और थर्ड कनेक्शन के साथ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से शैनन लिवर्जन एक हमारी यूएस, हाँ आई थिंक सो वो भी कैलिफोर्निया से ही है, वो भी हमें कनेक्ट कर रही है। सादल्ला वाला इनके साथ म्यूचुअल है, शैनन म्यूचुअल है, तो मैं इनको भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, और इस तरह से मेरे अब ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ कनेक्टेड होंगी, रादर देन के मैं पाकिस्तानी बेस या मिडल ईस्ट बेस या एशिया बेस जो है वो मैं कनेक्टेड करूँ। तो इस तरह से आप जो है अपने इंटरनेशनल ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो आप ये देख लें कि वो किसके म्यूचुअल फंड है। जैसे ये मुझे शो हुआ कि जो हमारी जेनिफर मिस है वो रेहान अलावाला के म्यूचुअल फंड में भी है, मुझे तो और फायदा हो जाएगा कि रेहान साहब के जो म्यूचुअल फंड है वो भी मेरे साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपने ये भी देख लेना है कि क्या इसको आपको ऐड करने से कोई फायदा होगा। जैसे ये सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा है तो प्रीति हो गया, मुझे भी इस पे काम करना है, ठीक है मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। सीनियर डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट है, एजुकेशन पे काम कर रही है, मैनेजमेंट पे काम कर रही है, इट्स ऑल्सो गुड फॉर मी। इस तरह से आपने अपने वाला वाली को जहन में रखते हुए भी लोगों को ऐड करना है। ठीक है, जैसे अब ये वाले हैं जाने मिया के जाने मियान जो है वो डायरेक्टर ऑफ लर्निंग है, इनोवेशन है, डिजाइन है, तो ये तो और भी अच्छी बात है, ये भी लर्निंग पे काम कर रही है स्टूडेंट्स पे, तो हम उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सीन आयान एंड सेकंड, अगर आप ये देखें उनके साथ साथ लिखा हुआ है कि ये सेकंड कनेक्शन में आएंगे ये थर्ड कनेक्शन में आएंगे, तो जहां जहां जो जो सेकंड कनेक्शन में है उनके साथ लिखा आ रहा है, क्योंकि ये उनके फ्रेंड्स को मैं ऐड करी हूँ ना जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है, इस वजह से उनके साथ सेकंड लिखा हुआ है। जब आप किसी थर्ड पर्सन को ऐड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मिलेगी, जो कि मतलब ये बताएगा कि ये आपके किसी भी तरह से कनेक्शन में नहीं है। ठीक है, आप उनको ऐड करना चाह रहे हैं जो कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के कनेक्शन में आपको मिल रहे। ठीक, इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसे फॉरेनर से कनेक्ट होने का मौका बन जाएगा जो कि सेम नीश पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। ठीक है, और इस तरह आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ जाएगा और आप इनसे कनेक्ट होके इनके इंटरव्यूज कर सकते हैं, इनको अपने आइडियाज दे सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं कि अगर मैं भी इसी तरह से काम करना चाहूँ तो और पाकिस्तान में ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फिर मुझे वहां पे किस तरह से इनको कैटर करना होगा
और आप मुझे किस तरह से इन सारी चीजों में गाइडेंस दे सकते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से इन सारी चीजों में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इस तरह आपने डे टू डे बेस पे सर रेहान अल्लाहवाला को फॉलो करते हुए कि रेहान अल्लाहवाला साहब के म्यूचुअल फ्रेंड वो रहे, और फिर आप उनको ऐड करते हैं। ठीक है, और रेहान अल्लाहवाला के म्यूचुअल फ्रेंड के लिए आपको चाहिए कि कोई ऐसा बंदा जो कि सर रेहान के साथ कनेक्टेड हो, उसका वो म्यूचुअल फ्रेंड बन जाए, तो फिर आपके लिए और आसान हो जाएगा सर रेहान तक पहुंचना। ठीक है, तो ये पूरा एक वे है। अदरवाइज फिर आपको, जैसे वो मुझे कह रहा था ना कि अभी आप पैसे अप्लाई कर लो तो आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, फिर इसी तरह आपको भी ये करना पड़ेगा और आपको वो पैसों के साथ आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाए, और फिर सर रेहान साहब को आप ऐड कर लें। क्योंकि ईमेल तो बिल्कुल सर रेहान अल्लाहवाला अभी तक हमसे कह नहीं सके, और ना ही हमें कोई ईमेल अभी तक मिली है। इस बात में हमारी बात हो चुकी है। सो लेट्स सी कि कब सर दौलत ये सर अहमद कम्युनिकेट करे और हमारे पास उनका ईमेल जो है वो आ जाए। ठीक है, इस तरह से आप अपने लिंक्डइन को बेहतर लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और खुद को बेहतर लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी मिसल। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे फेसबुक पे एक मतलब लिमिट है ना न्यू आईडीज के लिए, मतलब हम एकदम ज्यादा लोगों को वो नहीं कर सकते, मतलब फ्रेंड के लिए वो एक बैड इफेक्ट आता है, तो क्या इस पे भी ऐसी कोई है लिमिट्स या ऐसे रूल? ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर एल्गोरिदम जो है वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा स्क्रूटनिंग को फॉलो करता है, पॉलिसीज को फॉलो करता है। इसमें आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी को ऐड करेंगी, टैग करेंगी और उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रही है, तो आपने कोशिश करना है कि दिन में 5 से ज्यादा कनेक्शन नहीं बनाए आपने, अगर आप बिल्कुल न्यू है। ठीक है, अगर आप कोई 5 से 6 साल से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो भी ये एक सजेशन यही है कि आप 5 या 7 से ज्यादा लोगों को ऐड नहीं करें, 5 से 7 से ज्यादा लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजे, मैसेज नहीं करें और उनको सर्च नहीं करें। वरना लिंक्डइन ये सोचता है कि अच्छा ये एकदम से इतनी ज्यादा अब ये दोबारा सर्चिंग क्यों हो रही है, वो 5 साल तो पहले चुप करके सोया रहा और 5 साल बाद उसको जाग आ गई है कि अच्छा ये काम करना। ठीक है, तो ये चीजें होती है। हाँ, जो बहुत फ्रीक्वेंट यूजर है और उनके लिए वो डे टू डे बेस पे सर्च करें, कनेक्ट करें, दैट्स प्रीटी होती है। ठीक है, तो जब हम भी उनके फ्रीक्वेंट यूजर बन जाएंगे कोई 1 साल तक, तो फिर उनका एल्गोरिदम हमें भी अलाउ कर देगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, ओके जी। अब हम चलते हैं कि यूट्यूब पे पोस्टिंग कैसे करेंगे। 10 बज चुके हैं। पहले मुझे सबसे पहले आप थम्स अप करके बता दें कि सबकी स्टोरी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है। ओके, मिस फायजा डन, ओके सुलेमान भाई डन, मिस राहत डन, जबरदस्त। अहमद मुस्तफा, मिस लुबना, मिस लाला, मिस सोलत और मिस गुलशान ने मिस सोलत आपका नाम दौलत लिखा हुआ है, तो उनको बता दें कि वो आप ही से कम्युनिकेट करके आपका इंटरव्यू मांगना चाहेंगे। ओके जी। जी मीरब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर डूइंग इट। आजम भाई आप रह गए, फारूक भाई आप रह गए। फारूक भाई डन, जबरदस्त फारूक भाई। ओके, इशाल जरा आपकी स्टोरी पोस्टिंग हो गई। मैं मैं बस कर रहा हूँ पोस्ट अभी। कर रही हूँ, हो गया है, बस हो गया। ओके जी, ओके करेक्ट। मिस गुलशान आपकी स्टोरी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। जी फारूक भाई आपको कुछ कहना है। इसमें जो इमेज है वो जनरेट नहीं हो रही है परप्लेक्सिटी में ना, तो इमेज जनरेट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल करना है, और यानी परप्लेक्सिटी तो 2 मिनट में जनरेट कर देता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता परप्लेक्सिटी। अच्छा, लेट मी चेक। हाँ प्लीज आप चेक कर लीजिए। ठीक हो गया जी पार्टिसिपेंट्स। ओके जी, जेमिनाई में कर लें, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, स्टोरी सारी कॉपी करके जेमिनाई को दे दे और लास्टली प्रॉम्प्ट दे दे, वो जेमिनाई में कर सकते हैं। ठीक हो गया। मिस फायदा ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया। मिस फायदा आप बता सकते हैं स्क्रीनशॉट का जो शेयर किया है, ये मेरे लिए शेयर किया या पार्टिसिपेंट्स के लिए किया है। नहीं, वो मैंने सबके लिए करा था क्योंकि मैंने यूट्यूब पर पोस्ट करा था ना, तो उसका। हम्म, गॉट इट, गॉट इट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ओके हाँ। पार्टिसिपेंट्स, सो आज हम जो है वो यूट्यूब पे भी पोस्टिंग करते हैं अपनी स्टोरी पोस्ट को, ताकि आप सब भी इसको सीख लें, क्योंकि मुझे भी वेडनेसडे को पता चला कैसा हो सकता है। पहले फिर यूट्यूब जो है वो कम्युनिटी जब तक आपकी एक प्रॉपर नहीं बन जाती ना, तब तक आपको अलाउ नहीं करता, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब भी अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज को थोड़ा लाइटन मोड पे रख रहा है, तो इसलिए ये चीजें अलाउ की जा रही। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आना है आपने अपने चैनल में। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आपके चैनल के साथ क्रिएट। ठीक है, यहाँ क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट पोस्ट का।
इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्रिएट पोस्ट में आप आएंगे तो सी आपके पास इस तरह की एक रेक्टेंगल ओपन हो जाएगी। अब ये मेरा ऑफिशियल चैनल है तो इसी मैं इसी से कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पे उसी को ओपन किया है। तो यहाँ पे आप अपनी पूरी स्टोरी पोस्ट का जो आपका प्रॉम्प्ट है आपने दिया और पूरी स्टोरी लिखवाई थी तो वो आप ऐड कर देंगे, या आप अगर कैनवा पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो कैनवा पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है आपकी वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक करके और अपने लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर से वो जो इमेज आपने बनाया था उसको आप यहाँ से अपलोड कर देंगे इस पे क्लिक करते हुए, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप पहले अपना वो फोल्डर ओपन कर लें और वहां से इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दें, या आप इस पे क्लिक कर दें तो सेलेक्ट फॉर upload and image with aspect ratio between 2 ratio 5 and 5 to only select image or GIF have permission to use। अच्छा भाई ज्यादा तो दो drag up to 5 to ये ठीक हो गई। अब यहाँ से आप जो है ओके फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये एक इमेज है, ये मैंने अपलोड कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आपका इमेज है अब उसकी रेशियो अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये इमेज मैंने बनाया था लाइक दिस इज अ थंबनेल। ये मैंने अभी 2 दिन पहले सरेहान का जो एक वीडियो मैं देख रहा था, ये असाइनमेंट था मेरा और मुझे इसको कंप्लीट करना था, वीडियो देखकर उसका रिव्यू बनाना था। सो आई जस्ट कम्प्लीटेड इट और ये मैंने बनाया था 16:9 में, तो इसलिए उसको जो अप्रोप्रिएट लगा 5:2 के अकॉर्डिंग, तो उसने जो है वो स्केलर पोस्ट को फॉलो करते हुए सिर्फ उतना जो है उसको फॉलो कर लिया और बाकी साइड दोनों साइड से क्रॉप कर दिया राइट और लेफ्ट से। तो जब भी आप यहाँ पे अपलोड करें तो जो स्केल पोस्ट में हम कैनवा बनाते हैं ना दैट्स अप्रोप्रिएट वन फॉर यू, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा उसने कहा कि आप एक टाइम पे 5 डिफरेंट इमेजेस या 5 डिफरेंट GIF जो बिल्कुल शॉर्ट क्लिप होते हैं ना 1 सेकंड के, आप वो भी उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो काउंटर है वो 5 है। इसके बाद यहाँ पे वो हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ पे हमने इसको पोस्ट कर लिया और लास्ट में आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। अब अगर वो कह रहे हैं एडिट प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ से एडिट प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये वाला पोर्शन दिखाना है या मुझे ये वाला पोर्शन दिखाना है, लेकिन आएगा सिर्फ उतना ही जितना आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा क्योंकि डायमेंशन सेम नहीं है ना। डायमेंशन सेम होगी तो फिर ये आपको अलाउ कर देगा कि आप प्रॉपर अपना पूरा जो कैनवस है उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा, दैट्स इट। जो कि मिस फायदा ने अभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमारे साथ शेयर भी कर दिया। तो ये इतना ही आसान है जितना कि हम अपनी फेसबुक पे पोस्ट कर लें, हम अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लें या लिंक्डइन पे पोस्ट कर लें। ठीक है, बस बात सिर्फ इतनी है कि आपने एक बार क्रिएट कर लिया फिर हर चैनल पे जाके आप उसको मैन्युअली पोस्ट कर दें। जी मैं सिर्फ आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आवाज आ रही है लेकिन काफी हल्की है। अच्छा वो मैं ये पूछ रही थी कि ये जो हम AI से जनरेटेड इमेजेस बना रहे हैं तो इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ जाएगी हमें, क्योंकि यूट्यूब में नहीं तो मना किया हुआ है। नहीं कोई कॉपीराइट क्लेम्स नहीं आ रहे। मुझे एक ठीक मिनट दीजिएगा, ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बस एक मिनट। अस्सलाम आप इतनी देर में अटेंडेंस लगा लें प्लीज, जिन लोगों की अटेंडेंस रह गई है प्लीज मार्क कर लें। ओके पारित, ये था यूट्यूब के बारे में कि आप अपनी स्टोरी पोस्टिंग अपने कैनवा पोस्ट अपलोड कर देंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नहीं फिलहाल मैं कंपलसरी नहीं कर रही, अगले बैच से कर लेंगे। जब बैच हमारा 4 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है ना, 4 अगस्त को, उनके लिए कंपलसरी करेंगे। आप लोगों को थोड़ी रिलैक्सेशन दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर करेंगे तो ये आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, लोग आपको यूट्यूब पे इस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी गूगल शीट में स्टार्स को ऐड नहीं करा रही आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री की तरफ कि हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री किस तरह बनवानी है। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट्री को देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को भी सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, फिर हम डॉक्यूमेंट्री की बात करें। जी लैला। मैम आप मुझे क्लियर कीजिएगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बात को समझा। एक ये कि आप कह रही थी कि स्टोरी यूट्यूब पे डाल सकते हैं, आपने ऐसे कहा है ना? अच्छा जी अगर जी हम डालते हैं, जहां तक बात स्टोरी की है,
ऑब्वियसली जो बंदा यूट्यूब पे आता है वो इस माइंडसेट के साथ आता है कि हमने ना लिसनिंग के साथ एंजॉय करना है, तो मैम अच्छा, और अगर हम इस माइंडसेट के साथ उसको एक मतलब सेटिंग लेके चलते हैं और इस चीज को ध्यान रखते हुए हमने वो एक अपनी चीजें अपलोड करनी है या उसकी सेटिंग करनी है, तो हम कोई ऐसी अट्रैक्टिव स्टोरी चले हम बना लेते हैं, हम डालने लगते हैं, बट ऐसे है फिर उसके साथ हम या तो वॉइस ऐड करें, अगर हम उस ध्यान से चल रहे हैं कि हमने इसको ग्रो भी करवाना है और इसकी चीजों को बड़ा एक एक वे में लेके चलना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाए और जो हमारा पर्पस है वो हम अचीव करें, तो इसमें आप हमें क्या एडवाइस करेंगी अगर कोई हमारे बहन भाई इस चीज में अट्रैक्शन रख रहे हैं या उनकी कोई ऐसी वो है रीच ऐसा माइंडसेट? है कि आप जितनी स्किल्स अपनी शोकेस करेंगे ना, आप जितनी चीज स्किल आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे, उतना आपके लिए अपने लिए फायदा है। इट डजेंट मीन कि सारी आपकी पॉपुलेशन सारी एक जैसी नहीं होती है। वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल। हमारे पास जब भी होता है वो डाइवर्स लोग होते हैं। कुछ लोग पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोगों को लिखी हुई बातें सुनना ज्यादा अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि नहीं हमें हर चीज में सुनना है, हमें खुद नहीं पढ़ना। कुछ कहते हैं नहीं हमें सुनना नहीं है, हमें अपनी इमेजिनेशन के साथ चीजों को इमेजिन करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अभी तो आपने यही नहीं देखा कि आपकी जो ऑडियंस है उसमें से है कौन सी। अभी तो हमें ये भी नहीं पता ना। तो जब हम स्टार्टिंग में ग्रोइंग में होते हैं और अपनी इस बिल्कुल स्टार्ट फेज पे होते हैं, तो आपको हर चीज ट्राई कर लेनी चाहिए और ग्रेजुअली एंड स्लोली वी कैन फिगर इट आउट। फिर हम ऐसा ऐसा फिल्टर आउट करते हैं कि अच्छा मेरी ऑडियंस कौन सी ज्यादा चीज को पसंद कर रही है, मुझे किस चीज को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए और किस चीज को ऐसा ऐसा मिनिमाइज करते हुए छोड़ देना चाहिए। तो जब आप ग्रो कर रहे हैं और आप बिल्कुल स्टार्ट स्टेज पे हैं, तो फिर आप हर चीज ट्राई कीजिए और फिर ग्रेजुअली एंड स्लोली आपको खुद पता चल जाएगा आपको क्या करना है। मैम आपने बिल्कुल मेरे माइंड को पढ़ लिया है, इस बात से मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मैं जब कोई बुक रीड करती हूँ तो मेरा होता है कि मैं चाहे इसकी वॉइस भी है ना तो मैं बंद कर दूंगी और मैं खुद पढ़ूंगी। वाहिद एक किताब यूट्यूब पे है जिसकी मैंने मुझे वॉइस बहुत अट्रैक्ट की और वो थी 40 रूल ऑफ लव, ये एलिफ शफक की, तो वो मुझे पहली किताब थी जो मैंने वॉइस के साथ सुनी। जी मैम आप ठीक कह रही हैं। ठीक, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। ओके जी पार्टिसिपेंट्स, अच्छा मैं अभी ओवरऑल स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो पहले मैं गूगल शीट के बारे में बता दूं कि आप एक ही सेल को यूज करते हुए 4 या 10 लिंक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, और फिर मैं वापस आऊंगी उस पे डॉक्यूमेंट्री पे। ठीक है, ताकि अगर किसी का कोई सवाल हो तो हम वो भी साथ साथ देख लें। अच्छा जी, कोई शीट यहाँ पे विदाउट लॉक पड़ी हुई है ताकि मैं वहां पे काम कर सकूं। हाँ इशान की, शाबाश इशान, अभी तक इसको लॉक नहीं किया आपने। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमने टेट टॉक की बात कर लेते हैं। या मैंने अब दिन में कोई 4 इंटरव्यू कंडक्ट कर लिए हैं। अब मेरे लिए मुश्किल बन गया कि एक ही दिन के 4 इंटरव्यू कैसे अपलोड करूँ। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी और यहाँ से अपनी फेसबुक पे गई। मेरे फेसबुक पे नहीं, ये मेरा फेसबुक नहीं। और ये हर प्लेटफॉर्म के लिए, आप लिंक्डइन को चाहें तो लिंक्डइन के 4 लिंक्स लगा सकते हैं, आप कैनवा को चाहे कैनवा के 4 लिंक्स लगा सकते हैं, आप अपने यूट्यूब के चाहे तो यूट्यूब के 4 लिंक लगा दें, इंस्टाग्राम के लगा रहे हैं इंस्टाग्राम के लगा रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के 4 लिंक्स एक ही सेल में लगाए जा सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। जैसे कि ये मेरा एक मैंने रिव्यू बनाया। अब मैंने इसको इंग्लिश में भी बनाया, मैंने इसको उर्दू में भी बनाया। अब मैंने इसको पोस्ट करना है और मैंने अपलोड करना है गूगल शीट के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेती हूँ और मैं वापस आ जाऊंगी गूगल शीट। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैंने कोई 4 इंटरव्यू एक साथ कर लिए, तो मैं लिखूंगी सबसे पहले मैंने Ctrl+K को प्रेस किया। आप ये कर ले, या आपके ये जो राइट साइड पे 3 डॉट्स है, आप उनको क्लिक कर ले, तो आपके पास ये जो क्लिप का साइन है, ये भी आपको ये सेम विंडो ही ओपन कर देगा आपके लिए। जैसे इसने ओपन की, यहाँ मैंने लिखा एपिसोड 10 और नीचे लगाया मैंने हाइपरलिंक और इसको अप्लाई कर दिया। तो ये पहला लिंक लग गया मेरा। ठीक है, उसके बाद मैं प्रेस करूंगी स्पेस। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ कॉमा प्रेस करके फिर स्पेस प्रेस कर दे, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ठीक,
अब दोबारा मैंने इसी सेल में दूसरा लिंक लगाना है, मैं दोबारा से ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया, ये जो इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके, और यहाँ पे फिर से एपिसोड 11 और यहाँ पे लिंक ऐड किया और इसको अप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि एक ही सेल में 2 लिंक्स मेरे अप्लाई हो गए। अब मुझे फिर याद आया कि नहीं, अब मुझे टाइम मिल गया, मेरा एक और इंटरव्यू हो गया, मैंने फिर कॉमा लगाया, स्पेस, और फिर से यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक किया, या कीबोर्ड से अगर कोई यूज करना चाह रहा है तो Ctrl+K कीज हैं, उनको यूज करके आप यूज कर सकते हैं। अब दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा एपिसोड 12 और इसके बाद मैं यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट किया, अप्लाई कर दिया, और ये मेरा एक ही सेल में आप देख सकते हैं कि 4 डिफरेंट लिंक्स ये लगा सकते हैं। मतलब आप 10 लिंक लगाना चाहे आप लगा लें, 4 लगाना चाहे 4 लगाएं, 2 लगाना चाहे 2 लगाएं, जितने आपने लिंक लगाने हैं आप एक ही सेल के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 4 से ज्यादा लगाऊंगी तो फिर मुझे उसको जो है वो क्या कहते हैं वो करना पड़ेगा, रैप अप करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक ही सेल में फिर सारे लिंक्स, अब मुझे 6 लिंक्स एक साथ नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम एक ही दिन में कुछ ज्यादा इंटरव्यूज कर रहे हैं, हम इस तरह से हर एक का एपिसोड नंबर अलग अलग लिखेंगे, और आप देखेंगे कि जब भी हम एक डिफरेंट लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट ही लिंक मिलेगा। मेरे पास अब ये एक ही लिंक मैंने कॉपी किया था, इसलिए मैंने हर बार जो है वो एक ही लिंक लगाया है। लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि एक सेल के अंदर 4 से 5 डिफरेंट, ये देखिए अब आपको चारों जो है वो नंबर वाइज दिखा रहा है कि ये लिंक्स आपने अपलोड किए हुए, ठीक है। तो आप पहला देखना चाह रहे हैं अपना इंटरव्यू, या कोई आपका देखेगा तो पहले लिंक पे क्लिक कर लेगा। किसी ने आपका 12th इंटरव्यू देखना है तो वो आपके 3rd इंटरव्यू पे क्लिक कर लेगा। इस तरह से आप एक ही सेल में 4, 5, 6, 7 जितने लिंक्स लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे परेशान ना होंगे, आपने एक ही सेल दिया है। हाँ, अगर किसी को एक सेल में नहीं लगाना, 2 सेल में ऐड करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक तरीका तो ये बता दिया मैंने कि एक ही सेल में 3 से 4 डिफरेंट लिंक्स ऐड कर ले। अगर वो भी मुश्किल लग रहा है नहीं करना, तो यहाँ पे आइए, वो जो आपकी TEDx टॉक लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड पे काउंटिंग लिखी हुई है कि वो रो नंबर कौन सा है उसका, उस पर राइट क्लिक करें, और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसके ऊपर लिखा होगा इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करके इस तरह से एक नई रो क्रिएट कर ले। जब ये नई रो क्रिएट करेंगे तो ये जो नई रो आपने क्रिएट की हुई है इसके ऊपर आप अपना उर्दू का लिंक लगा लें, ऊपर अपना इंग्लिश रिव्यू लगा लें। मतलब आप यहाँ पे लिखें Put और यहाँ पे मैंने लगा दिया लिंक और अप्लाई करके, तो मेरा यहाँ पे इंग्लिश का लग जाएगा। अगर कोई इसी सेल में लगाना चाह रहा है दूसरा लिंक, तो वो यहाँ पे ही दोबारा लिख देगा रिव्यू नंबर 49, और यहाँ पे हमने उस लिंक को ऐड कर दिया एंड अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ही आपके दोनों लिंक्स ऐड हो जाएंगे। अब ये क्या है कि ज्यादा लंबा हो रहा है, हम यहाँ से आएंगे और इसको रैप कर देंगे ताकि ये 2 सेल की बजाय एक सेल में ऐड, दैट्स इट, ठीक है। और अगर किसी को ये नहीं करना, वो ऊपर इंग्लिश ऐड कर दे, नीचे से एक रो इंसर्ट कर ले अपने लिए, और Ctrl+K करके और यहाँ पे उर्दू का रिव्यू अलग से जनरेट कर दे, उर्दू रिव्यू नंबर 9। इस तरह से आप दोनों तरीके से आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। जो चाहे अपना एक ही सेल में 2 लिंक्स लगाने हैं वो एक ही सेल में 2 लिंक्स लगा सकता है। जिसको एक सेल में 2 लिंक लगाने से थोड़ा वो लग रहा है कि मुश्किल है, नहीं हो सकेगा, तो वो फिर इसको कर ले। वैसे दोनों चीजें बहुत आसान है, जिसको आप बेहतर समझे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके लिए ये चीजें अवेलेबल है और आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। विशाल ज़ारा, आपकी शीट बहुत ही बुरी चल रही है, इसका कुछ ख्याल कर लो मेरी बहन। ये मैम एंड पे हो जाके जाएगा ना, इंशाल्लाह। नो नो मैम हो जाएगा, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा। जी ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह अब वी होप फॉर द बेस्ट कि ये हो जाएगा, ठीक है। हम भी आपसे यही तो होप कर रहे हैं। ये कौन सी रूट डिलीट होगी विशाल की शीट से, फॉन्ट की, अच्छा अच्छा। आपको कोई रो एक्स्ट्रा डिलीट भी करनी है तो भी सेम प्रोसीजर है, ऐड करनी है तो भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ तक गूगल शीट के बारे में कोई सवाल है तो प्लीज फिर मैं जो है वो डॉक्यूमेंट्री पे शिफ्ट करूँ।
जी पारिस्मेंट, सुलेमान भाई। मैम मतलब एक वो मतलब मैंने आपको बताया था ना फेसबुक का जो हुआ था वो मैंने कंप्लीट वगैरह करी, वीडियोस मैंने मेरी दूसरी आईडी पे आ गया। अब मैंने वो पूरी मतलब ना लाइन डिलीट करनी है फेसबुक वाली, तो वो कैसे हो? अच्छा, वो ऐसा है, ये देखिए आपकी गूगल शीट पे आगे इस तरह से। अब फॉर इंस्टेंस के मैंने यहाँ पे सारे लिंक लगाए हुए हैं, ये फेसबुक के ही चल रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिंक लगाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं सारी एक साथ ऐसे सेलेक्ट की, जहां से मुझे डिलीट करना है मैंने उतने सेलेक्ट कर लिए, और मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगी, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैं अभी इशाल का ये वाला जो लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ तक मुझे डिलीट करना था, तो मैंने सारे सेलेक्ट किए, कि बार बैक स्पेस प्रेस किया, वो डिलीट, बस इतना सा। जी मिस गुलशान की। मिस मरियम, ये शीट तैयार करते हुए रिव्यू नंबर जो है कि जैसे आपने टास्क हमें डे 4 का जो अलग दिया, डे 6 का अलग है, एटसेट्रा, तो जब हम शीट फिल कर रहे होते हैं तो वो अगर आगे पीछे हो गया तो रिव्यू नंबर ये है यहाँ इसको पुट करते हुए कोई इशू तो नहीं? वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप लिंक दे देंगे फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने अपना लिंक ऐड कर दिया है ना, तो लिंक तो ऑटोमेटिकली वही ऐड होगा जो आपने फेसबुक पे लगाया हुआ है। तो यहाँ आगे काउंटिंग आपकी 46 हो जाए और वहां पे 47 है, तो कोई मसला नहीं है। नहीं ऐसा ये यहाँ पे वो जैसे टेडेक्स टॉक है, तो वो जैसे हमें टास्क मिलता गया उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कि ऊपर वाली अच्छा, रो में डेट जो है। वाइज कह रही है। हाँ, जिस सीक्वेंस की बात कर रही हूँ कि जिस सीक्वेंस से आपने दी है उस सीक्वेंस में ना हो, वो आगे पीछे हो जाए, तो कोई इशू तो नहीं? हुए सारे हैं। नहीं, वो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि आपके टास्क कंप्लीट होने चाहिए। अब हम ये नहीं कह रहे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने 24 जुलाई को जो टास्क शेयर किया, आपने 24 को ही कंप्लीट करना था, तो वो नहीं हो पाया। आपने 26 को कर दिया, आपने संडे को कर दिया, आपने सैटरडे को कर दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। क्योंकि जो हम बाद में टाइम देते हैं ना, तो मेरे ख्याल में वो बाद में टाइम देने की बजाय अगर साथ साथ ये थोड़ी सी चीजें रिलैक्स करती जाए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। कि आपको अगर जो टास्क विद इन वीक नहीं कंप्लीट कर सके, वो वीकेंड पे सैटरडे और संडे को बैठ के कंप्लीट कर ले, तो फिर आपकी चीजें लाइन अप रहती हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं ना कि नहीं आपने उसी डेट को ही करना है, तो वो फिर पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हैसल होती है, और लेकिन वो फिर आखिर पे फिर एंड पे फिर अपने बहुत सारे काम जमा करके बैठे होते हैं, और फिर एंड पे ही वो काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो वो करने की बजाय अगर आप लोग वीकेंड पे शुरू कर देंगे कंप्लीट करना, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा, और फिर हम टाइमली, जैसे मैं कहती हूँ कि ये सब चीजें खत्म हो सकेंगी। जी मिस्टर वेरिया। इसलिए प्लीज रिपीट कर देंगे जो कॉलम सिंगल कॉलम में डबल लिंक को 2 ऐड लिंक्स करने है तो वाला 1 कॉलम। प्रोसेस। आप ये पूछना चाह रहे हैं कोई एक ही सेल में मैंने जो 3-4 लिंक इकट्ठे लगा के बताए वो? बिल्कुल। अच्छा, मैं जी जी मैं जी एक जी, मिनट में। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, नो वरीज। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ठीक है। अब ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस सेल में ये टेडेक्स देखी, और टेडेक्स में हमने 2 रिव्यूज पोस्ट करने हैं। हमने लिखा है यहाँ पे कंट्रोल के करके, ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह से भी हो सकती है कीबोर्ड से, और आप ये 3 डॉट्स पे राइट साइड पे देखिए, वहां पे क्लिक करेंगे इंसर्ट लिंक पे, और आपके पास वहां पे भी ये विंडो आपके लिए ओपन कर देगी। हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइटल लिखना है, इंग्लिश, पूरा भी नहीं लिखे, इतना भी चल जाएगा, 3 लेटर। रिव्यू नंबर 46 लिखा हमने, और सेकंड वाले सेल में हमने वो लिंक पेस्ट कर देना। देन प्रेस एंटर और अप्लाई, दोनों पे या तो क्लिक कर ले अप्लाई पे, या एंटर प्रेस कर दे, तो ये लिंक एप्लीकेबल हो जाए। इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा और एक सिंगल स्पेस दे देंगे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड हो जाए। अब इसके बाद आप यहाँ लिखेंगी, दोबारा से कंट्रोल के कर ले, या वो जो 3 डॉट्स पे ऑलरेडी क्लिक है उस पर क्लिक कर ले, तो ये विंडो ओपन हो गई। आप यहाँ लिखेंगे उर्दू रिव्यू नंबर 47। आपने 47 लिखना है, 47 लिख सकती हैं, 46 लिखना है, 46 लिख सकते हैं, दोनों तरीके से ठीक है। और अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपका लिंक अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से एक ही सेल में आपके 2 लिंक्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। तो मिस ये कंफ्यूजन नहीं होगी रीडर को, जब मतलब लाइक जब ये क्लिक होगा तो इतना लंबा इसका यूआरएल जा रहा होगा?
नहीं इसे, अच्छा अब ये भी बात सही है रीडर आपकी। अच्छा इसका यूआरएल लंबा नहीं जाएगा, जैसे मैं सेल पे क्लिक करूंगी ये देखिएगा लुक, अब जो आपकी गूगल शीट है वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। तो वो आपको बताएगी कि अच्छा जो पहला लिंक है ना वो इंग्लिश का है, दूसरा लिंक उर्दू का है, ठीक है। अच्छा ये अभी रैप अप इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने अभी इसको रैप अप किया था। ये बेसिकली रैप अप नहीं था, मतलब ये इस तरह था। मैं अभी हटा देती हूँ तो ये आपको दिखाती हूँ। भाई अच्छा ये रैपिंग नहीं था, मैंने इसको खुद रैप अप किया है, ठीक है। इस पे क्लिक करके और फिर मैंने इसको रैप अप करके इसको एक सेल में एडजस्ट किया ताकि ये एक ही सेल में रहे, दो सेल में ना जाए, और प्रॉपरली विजिबल रहे कि 47 रिव्यू जो है वो मेरा उर्दू का है और 46 रिव्यू जो है वो मेरा इंग्लिश का है। इस तरह से ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके। सो पार्टिसिपेंट्स अब हम बात करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री की, ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट्री को सीख सके। यहाँ तक जी मिस्टर आपको कोई सवाल है? नहीं, मैं देख रही हूँ, समझ आ रही है मुझे। ओके, यू रेज योर हैंड, दैट्स आई थॉट। ओके पार्टिसिपेंट्स, तो हम शुरू करते हैं अपनी आज डॉक्यूमेंट्री के बारे में। और डॉक्यूमेंट्री में सबसे पहले जो चीज हमने ख्याल करनी होती है वो सबसे जरूरी है आपका टाइटल। आपको अपने टाइटल के बारे में पता होना चाहिए और टाइटल के अकॉर्डिंग फिर आपने अपना टास्क शुरू करना है कि आप अपनी जो इस जैसे आज हमारा जो टाइटल है वो एआई का है, ठीक है। आई शेयर माय स्क्रीन, ओके। तो सबसे पहले हम आएंगे चैट जीपीटी पे। हम चैट जीपीटी पे आ गए और चैट जीपीटी पे आके हमने चैट जीपीटी से बेसिकली प्रॉम्प्ट लिखवाना है ताकि वो हमारे लिए प्रॉपर जो है वो पूरा जो वीडियो है उसको हमारे साथ शेयर करते हैं कि हम किस तरह से उस वीडियो को जनरेट करेंगे। चैट जीपीटी पे हमने क्लिक कर लिया, chatgpt.com, और हम आ गए चैट जीपीटी में। अच्छा अब यहाँ पे हम लेट्स सपोज कि आज की वीडियो का ही प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्ट लाइक वीडियो एडिटर, प्लीज give the narration about। अब वो टाइटल हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है जो कि हमारे आज के टास्क है। हम अपने टास्क पे आ जाते हैं और आज का हमारा टास्क है हाउ एआई कैन एनहांस एवरीडे लाइफ। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हमने कॉपी कर लिया और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया? अब ये यहाँ तक हो गया। प्लीज गिव मी नरेशन अबाउट हाउ एआई कैन एनहांस also share the same for each team to create a two video। ठीक है। अच्छा अब मैंने ये सबसे पहले जो लिखा, मैंने ये क्यों लिखा एक्ट लाइक ए वीडियो एडिटर, बिकॉज मुझे ये लगता है कि जब तक हम एआई को एज ए ह्यूमन ट्रीट नहीं करते या अपनी तरह से ट्रीट नहीं करते वो एक अच्छी तरह से आपको चीजें गाइड नहीं करता। दूसरी मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एआई के साथ जब भी कम्युनिकेट करें तो यही समझ के कम्युनिकेट करें कि ये आपका रिफ्लेक्शन है, आपका मिरर है, ठीक है। तो मैं जब भी प्रॉम्प्ट देती हूँ, मुझे जैसा भी कोई काम कराना होता है तो मैं उसको कहती हूँ कि आप खुद को समझो कि आप वही पर्सन हो और आप उसको उस तरह से एक्ट करोगे कि आपने कैसे ये चीज
क्रिएट करनी है। तो जब भी मुझे फेसलेस वीडियो बनानी होती है, और अभी भी बहुत सारे टास्क मेरे अभी उसके पेंडिंग चल रहे हैं जो कि अब करने हैं, तो मैं उसको इसी तरह का प्रॉम्प्ट देती हूँ, ताकि वो मेरे लिए पहले वो पूरी नरेशन लिख देगा, और साथ ही साथ मुझे वो पूरी वीडियो एक्सप्लेन कर देगा कि हर सीन के अंदर क्या होगा, ताकि मुझे स्पेसिफिकली वो वर्ड जो कीवर्ड्स जो है वो उस नरेशन में पिक नहीं करने पड़े, और फिर मुझे वो सीन शायद मिले या ना मिले। ठीक है, तो वो बजाय इसके कि मैं ज्यादा इस सारी चीजों को पे सर्च करूं और इन सब चीजों को ढूंढूं, एआई ऑटोमेटिकली मेरे लिए पक्की पकाई एक खीर मुझे दे दे, और मैंने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है कैनवा में जाके, और कैनवा मुझे डिजायर्ड लिंक्स जो वीडियोस है वो देना शुरू कर देगा। और अगर मुझे वो नहीं मिलती, और ऑल्टरनेट ये होता है कि अगर वो सीन के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा, तो जो नरेशन दी हुई है उसमें से उसके 2 से 3 कीवर्ड जो बेसिक हैं आप उसको पिक कर लें, तो भी आपको सेम स्पेसिफिक सीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप पूरा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को बता दें कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपको क्या करना है, और चैट जीपीटी आपको लिख के दे दे आपकी हर चीज। ठीक है, अभी मैं क्लिक करूंगी और ये 2 मिनट के अंदर ये सारी चीज मेरे लिए प्रिपेयर कर देगा। अब जब तक ये लिख रहे हैं तब तक हम चलते हैं किसी वेबसाइट पे, ताकि हम उसको भी तब तक अलाइन कर ले, और उसका नाम है 11 लैब्स। ठीक है, 11 लैब्स पे आएंगे, और मैं ये प्रॉम्प्ट आज ना कॉपी करके शेयर कर देती हूँ जूम चैट में, तो आप में से किसी को अगर ये चाहिए तो इसको यूज कर सकते हैं। सब इसमें एक चीज मैं चाह रहा था कि ऐड करवा दूं। उसमें ये होता है कि जैसे हम लिख रहे हैं ना, एक्ट लाइक अ वीडियो एडिटर, इसको मैंने एक जगह लर्न किया था कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक्ट लाइक एन स्पेशलिस्ट वीडियो एडिटर, तो वो हमें और ज्यादा इनहेंस जो है ना वो इसका वर्जन देगा। उतनी देर में आप इसको कर लें। मैंने प्रॉम्प्ट जो शेयर कर दिया चैट बॉक्स में। जब तक मैम रिजाइन करते हैं तो आप उतनी देर इसको ट्राई कर लें। Sorry for bad internet connection. I'm sharing my screen once more time. ओके, सो 11 लैब्स ने बेसिकली आपकी जो एआई जनरेटेड वॉइस ओवर है वो आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो अब 11 लैब्स पे हम आएंगे, और जो पहला ही लिंक है आप उसको क्लिक कर सकते हैं 11labs.io, या आप चाहे तो सेकंड लिंक भी क्लिक कर सकते हैं। अब पहला लिंक में इसलिए सबको मना करती हूँ कि समटाइम उसके ऊपर ना स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, तो स्पॉन्सर्ड लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए, और क्योंकि उसके साथ कुछ सर्टेन अनएथिकल एड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐड किया जा सकता है, जिसकी वजह से लोग जो ये समझते हैं कि ये वाली जो लिंक्स है इसको सब बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और ये एआई के लिंक्स है और ज्यादा यूज है, तो इसके साथ मेरी जो वीडियो है उसको भी थोड़ा वॉच टाइम मिल जाएगा, थोड़े आई बहुत मिल जाएंगे, और मेरा भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, जबकि वो एक्चुअल लिंक वर्केबल नहीं होता जो कि स्पॉन्सर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप लिंक खोलें तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, और फिर अपना लिंक को ओपन कीजिएगा। अब जैसे मेरे यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं लिखा आ रहा, तो मैं पहले लिंक पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे मैंने लिंक क्लिक किया, अब ये तमाम जितने भी एआई टूल्स हैं उन सबको पहले तो आपको साइन अप करना पड़ता है। जो भी आपके सामने पेज शो हो रहा है इसी तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपने जो जीमेल अकाउंट है इसके साथ ऐड कर देंगे। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि किसी भी जीमेल अकाउंट को ऐड करने से डरिएगा नहीं। आपकी कोई भी जीमेल अकाउंट की स्टोरेज फिल नहीं करेगा, कोई एआई किसी भी तरह से उसको फिल नहीं करेगा। ये आपकी बस इतना काम करता है कि जब आप इसको जीमेल से कनेक्ट करते हैं तो आपकी पुरानी हिस्ट्री आपके लिए सेव करना शुरू कर देता है, और वो उसी एआई टूल के अंदर ही सेव होती है। आपकी गूगल की जो ड्राइव है
उसकी स्पेस को यूज नहीं किया जाता। अब हम चलते हैं इतनी देर में चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी ने हमारे पूरे इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर दी। सबसे पहले उसने टाइटल लिख दिया, ड्यूरेशन बता दी क्या होगी, टोन उसने बताया अपलिफ्टिंग, इंफॉर्मेटिव, विजुअली इंगेजिंग, और वॉइस जो होगी वो फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट और मॉडर्न होगी। मतलब आप उसने आपको ये भी बता दिया कि जब आप किसी एआई टूल से इसको वॉइस ओवर करवाएं तो उसकी आपकी टोन कैसी रहनी चाहिए वो भी आप देख लें, और जिस एआई टूल का आप यूज करेंगे उसके जो वे ऑफ रीडिंग होगा या वे ऑफ जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब सीन बाय सीन ब्रेकडाउन और नरेशन उसने हमें दे दी। पहले सीन को कितना लंबा होना चाहिए, उन्होंने 0 से 15 दिया, ये बहुत ही लंबा सीन उसने आपको प्रोवाइड किया है। तो अब आपको इसमें 2 to 3 वीडियोस ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और अब जहां नरेशन लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये आपकी वॉइस ओवर है। ठीक है, और जो विजुअल्स लिखा है तो ये आपकी वो बैकएंड पे आपको जो सर्च करनी है कि आपके सीन्स कैसे होने चाहिए, ये आपको इन ये वाली जो है ये आपकी वो जिसे कहते हैं ना सर्च के लिए आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो उसने आपको शेयर कर दिया, जो कि आपने कैनवा के ऊपर जाके ऐड कर दिया। अब हम 11 लैब्स पे आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। ठीक है, जब आप साइन अप कर लेंगे, और साइन अप करने के बाद आप साइन अप करने के बाद लेफ्ट साइड पे इसके सारे जो टूल्स है वो सारे लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है। सबसे पहले जो है वो होम है, फिर वॉइसेस है बहुत सारी। जैसे वॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन सी वॉइसेस है, जो कि अभी यहाँ पे लिखी हुई भी नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों में से अगर कोई बहुत अच्छा है जिनकी प्रोनाउंसिएशन अप्रोप्रिएट है और उनको समझते हैं कि दैट पर्सन इज एक्चुअली वेरी गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग, तो वो इंसान खुद भी अपने लिए जो है इसको वॉइस ओवर कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको खुद नहीं करना तो एआई आपके लिए हाजिर है। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक कर लेंगे तो टेक्स्ट टू स्पीच में आपके पास, अब जैसे ही हम टेक्स्ट टू स्पीच पे कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें तो टेक्स्ट टू स्पीच कराना है ना, तो इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम पहली बार ओपन करते हैं तो ये वाला जो बॉक्स होता है ये बिल्कुल खाली होता है। जी, ये वाला बॉक्स बिल्कुल खाली होगा आपका। ठीक है, और आप जो है अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे चैट जीपीटी पे, और आप चैट जीपीटी पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, और वो मेहनत सिर्फ इतनी सी है जो कि हार्डली 2 मिनट लगेंगे। आप सबसे पहले अपने टाइटल को कॉपी करेंगे क्योंकि हमने अपना टाइटल भी जो है वो ऐड करना है वॉइस ओवर में। इसलिए मैं हमेशा अपना टाइटल भी ऐड करती हूँ वॉइस ओवर में, ताकि एआई अनाउंस करेगा कि टाइटल क्या था जिसकी वीडियो बनानी थी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ से अपनी नरेशन को ऐड करना शुरू कर देंगे वन बाय वन कॉपी करके। वो पूरा एक वॉइस ओवर हमारा जनरेट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब फिर से हम आएंगे अब उसने हर एक सीन की विजुअलाइजेशन और हर एक सीन की ड्यूरेशन तक आपको बताई हुई है। ठीक है, तो आप इस तरह से आपके लिए काफी आसान हो जाता है अपने लिए वीडियोस ढूंढना कैनवा के अंदर, और अपने लिए इस सारी सर्च को सर्चेबल बनाना, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। सिर्फ आप यहाँ से कॉपी पेस्टिंग करेंगे कैनवा में और आपको रेलिवेंट वीडियोस मिलती जाएंगी। और समटाइम अगर रेलिवेंट वीडियोस नहीं मिलती तो हम रेलिवेंट टेक्स्ट को भी यूज करके उसको एनिमेट कर दें तो भी हमारी वो वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो आप ये भी करा सकते हैं। इवन आप इसको ये भी बता सकते हैं कि मुझे ईच सीन जो है वो 5 सेकंड से लंबा नहीं दो। ठीक है, तो वो फिर आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा जो सीन्स है उनको ज्यादा ब्रेक डाउन के साथ शेयर करेगा, और फिर ज्यादा अच्छे तरीके से जो उसका प्रॉम्प्ट है वो आपको शेयर करेगा कि आप ये चीज सर्च कर लेंगे तो आपके प्रॉम्प्ट जो पूरी वीडियो के सीन्स होंगे वो कितने बने। ठीक है, इस तरह भी आप इसको दे सकते हैं। तो जितना ज्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आप इसके साथ शेयर करेंगे चैट जीपीटी पे, उतना ही ज्यादा अच्छा वो आपके लिए पूरी नरेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके नरेशन के बहुत अच्छे तरीके से आपको सर्च के लिए पूरा जो प्रॉम्प्ट है वो प्रिपेयर कर। अब इसने बहुत लंबा लंबा मेरे लिए नरेशन लिखा है, जो कि मैंने इसको ये नहीं कहा था यहाँ पे, तो मुझे जो है वो ईच सीन 5 सेकंड से ज्यादा लंबा नहीं चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे पूरा कर लें, और पूरा करने के बाद आप यहाँ पे ये व्हाइट कलर का आपको जनरेट स्पीच लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो पूरा वॉइस ओवर है ये चेंज होना शुरू हो जाएगा आपके वॉइस ओवर में। ठीक है, अब मेरे पास क्रेडिट इसके खत्म हो गया है। इसके टोटल क्रेडिट थे हमारे पास
ऑलमोस्ट 10,000, जिसमें से मेरे जो 9,359 जो है क्रेडिट्स मैंने यूज कर लिए हैं, और अभी जो ये वाली पूरी स्पीच है ये 1,004 क्रेडिट्स को चाहिए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाएगा अभी, इसलिए मैं आपको ओवरऑल पूरा बता देती हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसमें मैक्सिमम आई गेस 5 से 6 वाली वीडियोस आराम से फ्री वर्जन में बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम कुछ और एआई टूल्स भी शेयर करेंगे कि अगर ये नहीं काम करता तो दूसरे किसी को यूज कर ले, अगर वो नहीं काम करता तो किसी तीसरे को यूज कर ले, ठीक है। तो जैसे ही आप जनरेट स्पीच पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्पीच जनरेट हो जाएगी। अच्छा, आप राइट साइड पे देख लेते हैं, तो ये जो हमारे पास सेटिंग पे है, अब यहाँ पे जो वॉइस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये बेल जो लिखा हुआ है, बेसिकली आपके पास डिफरेंट वॉइसेस है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं जैसे बेल पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी एवेटर को सेलेक्ट करने से पहले इसका प्रीव्यू सुन सकते हैं, तो फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सा एवेटर को चूज करना चाहिए। आई गेस 5 हमारे पास ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है। ओके, 5 एवेटार्स हमारे पास फ्री में अवेलेबल है, ये 3 जो है ये पेड वर्जन में है, तो इसलिए जो फर्स्ट 5 है आप उनको यूज करते हुए अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से किसी एक को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बेल की जगह ब्रायन को सर्च कर लिया, मैंने आप इस पर क्लिक किया, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये यहाँ से ये जो व्हाइट ऊपर वाला सर्कुलर टिक है ये यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ब्रायन की आवाज में मेरे पास जो है वो ये or it happens. I think internet is not working properly. ओके, अब जैसे हमने ब्राइन पे क्लिक किया और ये ब्राइन हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अब नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते तो यहाँ पे उसकी स्पीड है, आप चाहे तो राइट साइड को इस पॉइंटर को मूव करते जाएंगे तो ये उतनी फास्ट स्पीड हो जाएगी, और अगर इसको आप जैसे कि बाय डिफॉल्ट सेटअप उसी पे रहना चाहेंगे तो ये आपकी चॉइस है। स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी आप डिपेंड करता है कि आप जो वॉइस के साथ साथ वो क्लैरिटी है उसको कितना प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसको भी आप जो है वो पॉइंटर के थ्रू कम ज्यादा कर सकते हैं। सिमिलैरिटी में ये आपके पास ये पता चलता है कि आप जो एक्सेंट्स हैं आप उनको कितना अच्छे तरीके से समझते हैं, और आपको कितना लगता है कि क्लोजर टू दैट है। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो थोड़ा फास्टर स्पीड में वो एक्सेप्ट है नॉर्मल जो रियल लाइफ में है, आप यहाँ से उसके पॉइंटर को हाई नोट पे कर देंगे तो उतना फास्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टाइल एग्जैजरेशन। अब इसमें ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई बात कर रहा हो तो उसके जो फोनिक्स या सिलेबल उनको ध्यान में रखते हुए आप बात करें, तो फिर आप जितना ज्यादा इसको राइट साइड पे जो है वो एक्सटेंड करते जाएंगे उतना ज्यादा स्लोअर टोन में बात करेगा, जिसमें आपके पास सारी की सारी आपको फोनिक्स भी समझ में आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये जो चेक इन लगा हुआ है टॉगल ऑन है स्पीकर बूस्ट का, इसको बाय डिफॉल्ट ही ऑन है, मैंने ऑन नहीं किया तो इसको ऑन ही रखिएगा, ठीक है। यहाँ से होगी हमारी वॉइस ओवर जनरेट, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एक हिस्ट्री में जाके, ये जो ऑलरेडी मेरे पास जनरेटेड है वॉइस। ओके, अब जैसे हम हिस्ट्री में आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कुछ वॉइस ओवर जनरेटेड है और उनकी डेट्स भी लिखी हुई है कि लास्ट टाइम मैंने इनको कब कब यूज किया था, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप इसको डे टू डे लाइफ में जब इसको यूज करेंगे इस तरह से आपके पास आपकी हिस्ट्री भी अवेलेबल होगी। अब जैसे हम इसको पूरा सुन लेते हैं, सुनने के बाद यहाँ पे आपको एक अपसाइड डाउन एरो जो है वो नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये डाउनलोड होके आपके लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा।
और बाकी रेस्ट प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे आप पहले सॉन्ग के लिए वीडियो बनाते रहे हैं। कैनवा में जाके आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, वो अपलोड से आपके कैनवा में आ जाएगा और फिर उसके बाद आप उसके रिलेटेड वीडियोस जो है उसको ऐड करते जाएंगे। तो रेस्ट इज द सेम प्रोसीजर। आपने फिर बाकी काम जो है वो कैनवा के थ्रू ही करना है, ठीक है। शुरू से सिर्फ प्रोसीजर ये है कि हमने सुनो डॉट एआई को यूज नहीं करना, हमने चैट जीपीटी को ही यूज करना है। सुनो में भी चैट जीपीटी को करते हैं, यहाँ पे भी चैट जीपीटी को करना है, लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी को एक डिफरेंट प्रॉम्प्ट के साथ करना है। देन आपने वो सारा नरेशन जो है वो सारी आपने कॉपी करते हुए वन बाय वन आपने पेस्ट कर देनी है अपने 11 लैब्स में, और फिर 11 लैब्स आपके लिए वॉइस ओवर जनरेट कर देगा। और 11 लैब्स का जो वॉइस ओवर होगा वो एग्जैक्टली एआई बेस्ड होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो फीमेल वॉइस को प्रेफर कर लें, चाहे तो आप मेल वॉइस को प्रेफर कर लें, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपके लिए जो 5 वो अवेलेबल है उन 5 को आप जो है वो देखते हुए आप फिर इसके अंदर यूज कर सकते हैं कि आपने इसमें से कौन सा वाला जो है वो यूज करना है। देन उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद फिर आप कैनवा पे जाकर उसको सेम प्रोसीजर के साथ फॉलो कर। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज। जी मैं शुक्रिया। मिस 11 लैब्स का जो आपने प्रीवियस लेक्चर दिया था तो मैंने उसमें इसको साइन अप कर लिया था। अभी जैसे आप करवा रही थी तो मैंने सेम प्रॉम्प्ट देके उसका नरेशन बिल्ड करवा लिया, जनरेट करवा लिया। जब मैं उसकी स्पीच जनरेट करवाती हूँ तो मैम वो मुझे प्लान का ऑप्शन देता है, जबकि मैंने तो उसको यूज ही नहीं किया, मतलब हिस्ट्री कोई भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह कुछ भी नहीं बनाया उसमें। ब्लैंक का ऑप्शन देता है? जी वो नहीं कर रहा, वो कह रहा है अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्टेड। हालांकि पूरे 10,000 मेरे पास क्रेडिट्स आ रहे हैं। मैं आपको शेयर करूँ अपनी स्क्रीन? जी जी प्लीज प्लीज। ये मैम सारा मैंने इस पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। हाँ ठीक है। जनरेट स्पीच, ये देखिए। ठीक है। unusual activity detected, free tire usage disabled, gear temporarily disable free access from your recollection due to unusual high activity from same IP address. This can happen in shared environment like आपका शायद VPN तो नहीं ऑन? नहीं मैम कुछ भी नहीं हो। फिर तो नहीं होना चाहिए ना इसको। अभी मैंने वैसे इसको लास्ट टाइम 4 जुलाई को वेंसडे को बल्कि मैंने इसको यूज किया तो तब तक तो ये वर्केबल था। फिर ये अब आपके साथ ये क्यों दे रहे? मैम मैंने अभी किया, मेरा भी हो गया। आपका हो गया है शायद? यस मैम हो गया। अच्छा मिस लुबना आपका सेलफोन या सॉरी आपका लैपटॉप यहाँ का ये जो है ये कोई और यूज करता है? नहीं मिस मैं यूज करती हूँ, मतलब बट इसको 11 लैब्स को किसी ने नहीं यूज किया क्योंकि ये तो मैं ही ओपन करती हूँ। नहीं 11 लैब्स की बात नहीं करिए। देखिए हमारे लैपटॉप पे सर्टन कुछ एक्सटेंशन या कुछ ऐसी VPN ऑन रह जाते हैं जिसकी वजह से फिर बाकी जो हमारी टैब्स है ना वो हिंडर करती हैं उसको। अच्छा ये प्रॉब्लम। ठीक हाँ, है इस टैब इसको का चेक। मैंने बुक मार्क बनाया था तो उस वजह से तो नहीं इशू आ रहा। नहीं नहीं बुकमार्क बनाने से तो इशू नहीं आएगा। बाकी मैम ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब देखी जाती है, मतलब और तो वो कुछ भी थ्री नहीं डॉट्स होता। पे क्लिक करें, राइट टॉप कॉर्नर में 3 डॉट्स है वहां पे क्लिक करें। राइट पे मैम कहाँ पे? हाँ एक्सटेंशन पे क्लिक करें। एक्सटेंशन नीचे 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 बुकमार्क के नीचे, हाँ जी ये इस पे क्लिक करें। मैनेज एक्सटेंशन में आए। नहीं आपकी कोई एक्सटेंशन भी ऑन नहीं है। आप VPN को चेक करें। मिस VPN मैंने कभी यूज नहीं किया, वैसे आप बता दें कैसे चेक करते हैं क्योंकि मैंने कभी लगाया ही नहीं कुछ। अच्छा 3 डॉट्स पे क्लिक करें, वहीं से नजर आएगा आपको VPN की। कैसे? नहीं नहीं हो। अच्छा जब हम VPN ऑन करते हैं ना तो या VPN मैम को यूज सेटिंग करते में हैं जाके तो ये जो राइट साइड पे ये जो आपको एक फीचर नजर आ रहा है ह्यूमनिस्टिक ऐड करने का कि आप अपना अकाउंट लॉग इन कर ले, उसके साथ यहाँ पे ना एक छोटी सी अलग सी एक आइकन शो होता है जो कि समटाइम ग्रीन होता है समटाइम येलो होता है। दैट्स कॉल्ड द VPN टर्न ऑन। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपने कौन सा VPN की जो प्रॉक्सी है वो ऐड की हुई है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको शो।
मैम ये नॉट साइंड इन भी शो हो रहा है इनका पर्सन 1 के अंदर, इसको देख लें जरा सा। हाँ, मैं वही देख रही थी कि आपका ये वाला जो अकाउंट है ना, इसको साइन इन करके फिर दोबारा चेक कीजिए, या गूगल में जाके इसको करके देखिए, क्योंकि यहाँ ठीक पे ना आपका ये अकाउंट साइन इन नहीं है। ठीक है मैम, ठीक, मैं इसको दोबारा चेक कर। हाँ जी, मिस इरम मुश्ताक, आप शेयर कर लें अपनी स्क्रीन। ये जो ये रिलेशन के लिए अभी मैंने जो लॉगिन किया उसके लिए कह रही हूँ। हाँ जी, आपने कहा ना 11 कि लैब आपने अभी मैंने 11 लैब, हाँ जी हाँ प्लीज जी ऑल्सो इन power.net problem that I have already shared in the class का। शबीर भाई, मैंने भी ये प्रॉब्लम जो है बता दिया कि मैंने आगे। ये शेयर हो गया। अच्छा, ठीक है मिस, यहाँ पे अब आप जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करेंगी, और टेक्स्ट टू स्पीच में जाके और आपने यहाँ पे अपनी सारी नरेशन कॉपी करके इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। हाँ, अब आपने अपने टाइटल से लेके और जहां जहां नरेशन लिखा हुआ है ना, उसको कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करते हुए आपने ऐड कर देना है उसको अपने 11 लैब्स में, और वो आपके लिए फिर वहां पे ऐड कर देगा उसको, टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो टाइटल मैंने कॉपी किया ये ऐसे ही पेस्ट कर दूं? हाँ जी, ये यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये। अब एंटर प्रेस करें और इसके बाद 1 बाय 1 अपनी सारी नरेशन को ऐड कर दें। और नीचे आए, और नीचे आए। हाँ, ये वीडियो लिखा हुआ है ना, वीओ, तो ये आपकी वीडियो का वो वॉइस ओवर है। और वॉइस नीचे ओवर है। विजुअल, हाँ जी, ये वॉइस ओवर है। नीचे जो विजुअल्स लिखा हुआ है वो डायरेक्शन दे रहा है कि आपने क्या क्या चीजें सर्च करनी है और पहले सीन के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। तो ये जो वॉइस ओवर में ये 2 लाइनें सिर्फ ये कॉपी करके पेस्ट करूंगा? ये कॉपी करके आपने पेस्ट करते जाना, सारे सीन्स की एक साथ कॉपी करनी है और फिर उनको पेस्ट करते जाना। पहले नहीं नहीं नहीं, वीओ नहीं कॉपी करे ना, सिर्फ वो 2 लाइंस को कॉपी करें। AI इज इन सम डिस्टेंट फ्यूचर, हाँ जी, इसको कॉपी करें और इसको वहां पे पेस्ट कर दें। और इसी तरह आपने सारी जो है वो 1 बाय 1 करते रहना, और फिर आप उसका वॉइस ओवर बनवा लें, ठीक है। जी मिस लुबना, आपका कोई और सवाल है? मैम मुझे जो दूसरी वॉइस ओवर देनी है उसमें स्पेस तो नहीं देनी, बस कंट्रोल भी करती जाऊँ सर? बिल्कुल, कंट्रोल स्पेस दे भी दे तो कोई मसला नहीं आता, लेकिन अगर ना दे तो ज्यादा बेहतर है। आप कंट्रोल भी करते जाए और बस आपका काम हो, ठीक है। Okay. Any participants, any question, any query regarding today's class? आज तक जो हमने सीखा, जो कुछ भी देखा उसको बता दें। शबीक भाई, मैं आपसे ये कह रही थी, एक तो पहले मैं आपके बारे में बता चुकी थी कि आपने अपने नाम के साथ कोई वाला ऐड नहीं किया या मुझे नजर नहीं आता माजिद के साथ, तो अपनी गूगल शीट में उस नाम के साथ वाला ऐड कर लें ताकि मुझे पता चले शबीक भाई कौन से वाला है। वैसे तो मैं आपकी फेसबुक और लिंक्डइन को चेक किया था, मुझे पता चला था कि आप AEO हैं, और मेरी कुछ फैसिलिटेटर्स हैं जिनको पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट के इंटरव्यू करने हैं, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी उनको कि वो आपका इंटरव्यू कर ले, ताकि वो जान सके कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉज है। और डेफिनेटली आप यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको भी वो इंटरव्यू कर लेंगे ताकि वो उनको भी जान सके, ठीक है। तो मैं आपसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने एक वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लें, जो कि हाँ मैंने शेयर करना है, तो वो मैं ऐड कर देती हूँ उस ग्रुप में जो बैच 11 है, ताकि आप और फरूक भाई भी ऐड कर ले, ठीक। दूसरी बात, मैंने कहा है कि मैंने बेंचे को ही आपका प्रॉब्लम सुन के उसको कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मुझे उनकी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, आई विल शेयर विद यू ऑन प्रायोरिटी बेस, ठीक है। ओके, लैला जी अपना सवाल बताएं, आपका क्या सवाल है? मैम वो शायद मुझे लगता है नेट की वजह से या वैसे कोई इशू की वजह से वीडियो ऑन नहीं हो रही, मैं ट्राई कर रही हूँ बट वो नहीं, अभी आपकी वीडियो ऑप्शन। मैंने, ओके मैम। जी, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि होस्ट के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो यहाँ के होस्ट के पास ये भी राइट है, तो इस वजह से मैंने खुद बंद किया।
मिस फायदा, आप ये अपना सवाल बताएंगी मुझे, आपका क्या सवाल था? मैं भूल गई। मिस फायदा, हेलो। यस यस मिस। जी, यू सेंड मी टेक्स्ट। आपको कोई वो डबल हाँ लिंक्स के हाँ बारे हाँ में कुछ हाँ। पूछ? यस 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 प्लीज। लाइक आप ये चाह रहे हैं कि अगर आप फेसबुक का लिंक अपलोड करते हैं और एक लिंक्डइन का लिंक सेम सेल में अपलोड करते हैं, देन व्हाट? राइट। नहीं 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 नहीं। ये मैंने आपको एक लिंक शेयर करा है, ठीक है। उसमें ऐसे करके जैसे पीपीटीज नहीं होती है कि स्लाइड टू स्लाइड वो चल रहा होता है, ठीक है। वैसे करके लिंक्डइन पे पोस्ट जो है ना ऐसे करके है कि वो इमेजेस नहीं है, लेकिन वो ऐसे करके है कि वो स्लाइड पीपीटी की तरह है। और उसमें ऊपर लिखा हुआ आता है कि 5 पेजेस 6 पेजेस लाइक दैट। तो वो चीज मुझे पूछनी थी कि वो वाले पोस्ट कैसे डिजाइन होते हैं। अच्छा, वो वाले वो एक्चुअली ऐसे डिजाइन होते हैं कि आप जैसे एक इमेज ऐड करते हैं ना, उसके बाद आपके पास दोबारा इमेज ऐड करने का ऑप्शन आता है। लाइक जैसे आप फेसबुक पे 5 से 6 इमेज एक साथ सेलेक्ट करके आप मिस जो मैंने है इमेज नहीं नहीं, मैंने इमेज ऐड करके देखा, लेकिन वो इमेज नहीं है। वो कोई दूसरी चीज है, वो मैंने ऐड करके देखा। क्योंकि अगर हम लोग इमेज कर रहे हैं ना तो वो फिर एक ऐसे जैसे ग्रुप फॉर्म में आ रहा है। लेकिन वो जो मैंने आपको एक सैंपल लिंक भी पोस्ट करा है, ठीक है, जिसमें वो दिखा रहा है कि कैसे करके वो जो है ना स्लाइड, यानी एक स्लाइड फिर दूसरी स्लाइड फिर तीसरी स्लाइड यूं करके है। तो वो ओके, अगर आप प्लीज मुझे, हाँ, डेफिनेट आप आई शेयर बाय टुमारो। ओके। यस अब मैं इंशाल्लाह मंडे को शेयर कर दूं आपके साथ, क्योंकि अभी वैसे भी टाइम कम श्योर। है, फिर इंशाल्लाह हम मंडे को शेयर यस करेंगे। यस 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 यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। यस मिस लिब्रा, यू हैव क्वेश्चन? यस मैम, मैंने साइन इन भी किया उस टैब पे, लेकिन वो फिर वही एरर शो कर रहा है। तो मैं फिर इसका क्या करूं? ब्राउजर चेंज करके देखो। सॉरी। ब्राउजर चेंज करके देखिए। चलो ठीक है, अगर ब्राउजर चेंज करके भी इशू आया तो फिर मैं इसको मतलब सॉन्ग की सूरत में ही बना लूं? हाँ, फिर आप सॉन्ग की सूरत में बना रहे, वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आता है तो फिर मैं दोबारा देखूँ कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ठीक। अभी आपके तो 10,000 पूरे के पूरे कॉइन मौजूद है, तो जी फिर जी। आपके क्रेडिट तो खत्म ही नहीं हुआ, तो फिर ये तो नहीं आना चाहिए। ठीक है। ठीक। चल, ओके। मेरी वॉइस ओवर जनरेट हो गई है, लोग। मैं सिरम की भी हो गई है। आप एक बार दोबारा ट्राई करके देखें और फिर मुझे बताइए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। Any participants, any question, any query regarding today's class? आज की क्लास के बारे में किसी का कोई सवाल है, कोई चैलेंज है तो प्लीज। ओके, अपडेट माय गूगल शीट विद लीडरशिप वाला। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच स्पीक भाई फॉर लीडरशिप वाला। और फरूक भाई, मैं वो लिस्ट अभी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, फिर अपडेट कर दीजिएगा। Let's, let's,
Okay, participants, thank you so very much for joining today's class. We'll see you on Monday. Keep doing amazing things and take good care of yourself. And please complete your task. That's actually the mandatory thing. You guys have to do it. And then if you have any kind of problem, any challenge, please let me know. And then we'll discuss on Monday. जी फारूक भाई, बाकी पार्टिसिपेंट मैंने सबके लिए वाला वाली लिस्ट शेयर कर दी है। प्लीज इसमें से अपने लिए रिलेवेंट वाला ये वाली सेलेक्ट कर लें और फिर उसको पोस्ट करते हैं अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और अगर किसी को चैलेंज आता है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो फिर उसको देख लेते हैं, ठीक है, कि ये कैसे होगा। जी फारूक सलीम भाई। जी ठीक है, थैंक यू। इसमें एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि जो ये हम चैट जीपीटी से नरेशन ले रहे हैं ना, इसमें जो सीन की डिटेल आ रही है वो भी 11 लेवल्स में हम लिखें, उसकी जरूरत नहीं है ना, सिर्फ नहीं, वो लिखने नरेशन की लिखनी जरूरत है। नहीं है, क्योंकि अगर वो पूरी अगर सीन भी डिस्क्राइब करने लग जाएगा ना, तो वो एक अच्छी साउंड नहीं आएगी उसका। फिर आपके वो जो कहते हैं ना कि कुछ क्रेडिट आपके हिंडर रहने चाहिए, वो हिंडर नहीं रहेंगे। मतलब हमें ये तो बताना चाहिए ना कि ये फारूक भाई का अपना आइडिया था, उन्होंने इतनी राइट, अच्छी अच्छी थैंक यू। वीडियोस कहाँ से ढूंढी। ये तो मुझे फारूक भाई से जाके पूछना पड़ेगा ना, फारूक भाई ये कहाँ से आपने ढूंढी है, तो फिर वो मुझे बताएंगे कि भाई मैंने ये हिडन चीज इस्तेमाल की थी और मैंने इस तरह से इनको सर्च किया। ठीक है, तो सारे कार्ड्स एक साथ नहीं दिखाते, कुछ कार्ड संभाल लेते हैं अपने लिए। ठीक है, thank you so very much everyone for joining tonight. We'll see you on Monday. Have a very good time with your family and friends and yourself as well. Thank you so very much. Allah Hafiz. Take good care of